So it was not only one-way communication, you made it two-way and just clarified all our practical doubts instead of theoretical ones. So now we will be heading to our technical session number 2. I would like to welcome CA Amitesh Agarwal ji and would like to call up him on the dais, please. So I will request Sri Hari Ram Agarwal ji for the Thanksgiving of the CS Srenik Mehta ji. We had a very lively, interactive and enriching session of CA Srenik Mehta ji, as being a senior partner in Singh & Company and diverse knowledge, and he has threadbare analysis of different aspects of disclosure and common errors in financial statement linked with AS and Schedule 3. We have certainly enriched by your deliberation, sir. Thank you very much, sir. A big round of applause to Srenik sir. Thank you, sir. So now I will be giving a brief intro about the CA Amitesh Agarwal ji. CA Amitesh Agarwal ji is the third generation practicing chartered accountant. He has also qualified FAFD AICA level 1 certification and secured all India 5th rank in DISA exam of ICI. He is currently member of Tax Audit Quality Review Group in Kolkata under TAQRB ICI. He is impaneled as peer review with Peer Reviews Board of ICI. He is Pan-India faculty for peer reviews under Peer Review Board. He has also served as a special invitee to the Digital Accounting and Assurance Board of ICI for the year 2024-25. He is also a regular contributor to various exposure drafts released by different committees of ICI. He possesses excellent data analytics skills and extensive knowledge in audit and assurance, MIS system implementation, peer review and other ICI reviews, and also in development of Excel-based utility tools for CS. So now I would request CA Hari Ram Agarwal ji, Vice Chairman, to felicitate CA Amitesh Agarwal ji. So now we will be heading for the our technical session 2, which for which the topic is common error in standards on auditing, reporting and certifications. Yeah, sure. For giving me an opportunity to deliberate on this topic of common errors. Okay, so sir, today although 3 topics have been given to me, it is common errors in audit report, common errors in certificates and common errors vis-a-vis standards on auditing. Now, although audit report is a subset of standard of auditing, that is a kind of, but the thing is that today I like to take this opportunity to deliberate more on the nuances of audit report. If the house permits, that is what I'll try to deliberate, and also on the aspect of certificates pertaining thereto. ऑडिट रिपोर्ट के भी बहुत सारे सेशंस हो जाते हैं, बट सर्टिफिकेशंस के ऊपर में बहुत बार जो है ना इश्यूज रह जाते हैं, एंड समटाइम्स देयर आर आल्सो नुआंसेस देयर टू, वेर इन टुडे आई लाइक टू आल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू डेलिब्रेट ऑन द सर्टिफिकेट्स. And as regard the certificates, which I mean to say, rather than calling it a certificate now, as far as I will take your help in again reintroduce the aspect of the guidance note on certificate issued by ICI. Any idea guidance note on certificate, special purpose certificate कब आया था इंस्टीट्यूट का? Any idea sir? 16. तो सर कितने साल हो गए? 8 साल हो चुके हैं, ठीक है. अब देखिए, on this aspect let me tell you, I'll be covering both this audit report and certificates, but the thing is that it is of paramount importance to understand the certification aspect there too, wherein we are giving a true and correct statement sir. वहाँ पे अपने absolute assurance, that is the case of
certification is nothing but an absolute assurance. Okay, and there were a lot of hue and cry wherein, see, we know on the basis of certain documents, certain evidences which we are provided by the client and which we verify, we try to give certifications to the clients in the manner as may be required, okay, upon our conducting the audit procedures as the case may be. However, in those cases, in those certificates or the earlier certificate aspects, we were just giving our opinion on a plain basis rather than also laying emphasis on the procedures conducted. Yeah, it is rather than saying that it's an absolute assurance, हमको उसको reasonable assurance बोलना चाहिए to safeguard ourselves. And that is why in 2016 itself ICAI had come up with this guidance note wherein they are saying in lot of aspects, rather than asking certificates, the regulators also know that it is not possible to give 100% aspects there to 100% true and correct नहीं हो पा रहा है, तो rather a reasonable approach will also do. And in that manner they said कि instead of giving a certificate, आप जो है independent auditors report भी दे सकते हैं, या independent auditors certificate के साथ में assurance report वगैरह भी दे सकते हैं in those regards. And sorry, not an independent auditors report, do not get confused with that, but in those cases they are saying कि audit report में जैसे अपने जो है opinion paragraph, basis for opinion, then we gave the management responsibility paragraph. Likewise in case of those certificates also, certificate नहीं बोल के उसको assurance reports बोलिए, assurance reports, and thereby it limits a lot of things. We'll come to that on a later stage, but that is why my intention was to bring this to your knowledge कि वहाँ पे अगर आप उनको change करने जाएंगे तो it will safeguard a lot, and that will also help in case God forbid there is any disciplinary mechanisms applicable in those regards wherein if you find that you are in trouble, those kind of certificates will also help you. And इसमें एक आप लोग का क्वेश्चन भी आएगा, मान लीजिए there is a format given by banks और regulators कि इसी format में देना है. सर you are saying कि आप तो बोल के निकल जाओगे कि certificate में देना है and my client is not accepting, या tendering process के लिए that process is there and those formats are not being accepted. How can you say that कि करना है, and how can institute say that? So don't worry, there is also a procedure assigned by institute there too. Institute is aware of the fact कि sometimes there might be special purpose certifications wherein एग्जैक्ट सर्टिफिकेशन का फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड है. उस केस में आपको कैसे डील विद करना है वो भी उस एस्पेक्ट में गाइडेंस नोट में कवर है. ओके, बट कमिंग टू दिस पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल compliance on standards on auditing. Now see, I like to take this opportunity again to throw the light with respect to the Companies Act 2013 vis-a-vis 1956. Standards on auditing पहले भी थे, but it gained momentum under the aspect of Companies Act 2013 wherein those standards on audit compliance became mandatory. Companies Act के अंदर में auditors were asked to perform audit in a manner so as to establish that yes, they have conducted audit in accordance with standards on auditing. Correct me if I am wrong, sir. पहले भी था, but पहले it was just like we call it, पहले it was recommendatory in nature as regards Companies Act was concerned, but since it was issued by ICAI, that was mandatory on us. Correct, sir? ठीक है. Likewise, if I draw your attention towards the guidance note on non-corporate financial statement also, again कहीं पे भी जो है ये रेगुलेटर के तरफ से कोई भी फॉर्मेट्स का मेंशनिंग नहीं आई है. करेक्ट सर? बट अगेन इंस्टीट्यूट हैज गिवन अस दैट गाइडेंस नोट एंड दैट इज व्हाई वी आर अबाइडिंग बाय दैट, एंड दैट फॉर अस इट इज काइंड ऑफ वी हैव मैंडेटरी फॉर अस. करेक्ट सर? तो उसी तरीके से इफ आई ट्राई टू ब्रिंग दिस अटेंशन, स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग पहले भी था, बट 2013 के बाद से इसका मैंडेट आ गया कि इट हैज टू बी मैंडेटरी अप्लाइड, एंड इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू प्रूव दैट ही हैज कंडक्टेड ऑडिट in terms of standards on auditing, then he might be liable for disciplinary actions until unless he is able to substantiate कि ये procedure किस लिए उसने नहीं किया था, या what were the hindrances there to which led to not performing certain audit procedures which were mandatorily required to. And if that be the case, standards on auditing पहले भी बोलता था कि you need to document the same. That is why in audit report we have the opinion paragraph, sir. ठीक है, फॉलोड बाय द बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ. वहां पे भी देखिएगा, रेड विथ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी देखिएगा, दोनों जगह पे वी आर लेइंग स्ट्रेसिंग दैट वी हैव कंडक्टेड ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. सर वहां पे स्पेसिफिकली वी आर सेइंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से हमने काम किया है. तो इट कैन नॉट बी सेड दैट कि वी से कि नहीं भाई वी हैव इफ द ऑडिटर इज सेइंग कि सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से मैंने काम नहीं किया, एंड इफ ही सेज इज अनेबल टू एस्टैब्लिश दैट ही हैज डन द सेम, लाइकवाइज he is in trouble thereof. So please keep this in mind. We cannot say or we cannot alienate ourselves from the applicability there too. And in case it is found that we are unable to establish that we have conducted the same,
स्टैब्लिश कैसे करेंगे सर? इट्स अगेन द डॉक्यूमेंटेशन, द ऑडिट वर्किंग पेपर, ठीक है. ओके, डोंट वरी, इट्स नॉट एन ऑडिट वर्किंग पेपर थिंग which we have to talk about, but coming by the fact that common errors, how it is identified और in what manner are we able to establish कि मैंने ऑडिट किया या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई किया. इट इज ओनली द वर्किंग पेपर ऑफ द ऑडिटर्स विच कैन एस्टैब्लिश दैट वेदर द ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड और नॉट. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर. इट्स ओनली दोज डॉक्यूमेंट्स विच विल हेल्प मी or help anyone to ascertain कि audit procedures apply किया कि नहीं किया, and if applied what were the procedures applied and what were the conclusions reached. ठीक है, because we also say in that audit report itself that we give a true and fair view on the basis of the substantial audit evidences obtained. ठीक है, audit evidence obtain करने के बाद ही हम बता पाते हैं कि material misstatements नहीं है, and then we give whether it gives a true and fair view or not. Okay, so over here on your screen there's this, you might be seeing it once again, but let me draw your attention towards that this is a quality review board annexure there too, wherein every year they come out with beautiful reports on various aspects of reviews conducted by the board during the year. And during that calendar year they identified that out of the deficiencies identified by the board of reviews of certain companies conducted by the reviewers, it found that 67% of the anomaly was only with regards to schedule 3, which I think Shrenik sir has already dealt with कि schedule 3 वर्क के financial statements में. So it cannot be said कि even if schedule 3 इतना पुराना हो चुका है, but still, and over here by schedule 3 I do not only mean to restrict myself to division 1 non-Ind AS, but over here Ind AS non-Ind AS दोनों covered है. ठीक है, so it is not just like that कि सिर्फ non-Ind AS की बात कर रहे हैं, Ind AS non-Ind AS दोनों covered है. Likewise, कारो रिपोर्टिंग में भी बहुत सारी डेफिशिएंसीज वर आइडेंटिफाइड विज़ कंपनीज एक्ट के एप्लीकेबिलिटी एंड एस्पेक्ट्स के में भी गया था. ओके, एंड देन आई ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस स्लाइड वेर इन इफ यू सी टू दिस, प्लीज सी टू दिस इज 2024 अगेन, एंड जस्ट वन मोर स्लाइड 1920. वाई आई एम डूइंग 1920 एंड 2024? 5 या 6 साल का गैप है सर, ठीक है, बट प्लीज सी इट इज द सेम काइंड ऑफ एक्सरसाइज QRB हैज बीन डूइंग earlier also and it has been continuing, but the thing is that early 2024 में भी देखिए कि non compliances with respect to SQC was 23%, vis-a-vis SA 505 external confirmations के ऊपर में भी deficiencies identified by the board were around 23% of the total findings. ठीक है, and then audit report 20%. ठीक है, and this SA 700 is a revised one. 2018 में नया वाला audit report आ चुका था. ठीक है सर. Now if I draw your attention again towards 19-20 का भी लेते हैं तो देखिएगा वहां पे भी SQC1 इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. ठीक है, ऑल्दो आज SQC1 का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट स्नैपशॉट ऑफ इट विल बी डिस्कसिंग बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ऑफ टाइम, बट स्टिल. एंड देखिएगा SA 505 अगेन प्लेज अ वेरी पिवोटल पार्ट ओवर देयर. आर यू एबल टू सी दैट 5-6 साल होने के बाद भी इट्स द सेम काइंड ऑफ थिंग दैट इज रिपीटिंग, एंड दैट इज वाई एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के ऊपर में भी विल लाइक टू टच अपॉन दैट. ऑडिट रिपोर्ट फॉर श्योर विल बी डीलिंग विद दैट. And this SA 230 is nothing but in generic all the audit evidences which we have obtained in those parlance that is being summed up as SA 230 का non compliance is there too. ठीक है सर, उस समय 18% था, अब 17% के आसपास है, but it remains one of the most sought after aspects wherein the regulators are finding deficiency. Okay, SA 210 सर है एंगेजमेंट लेटर. तो मैक्सिमम केसेस में जो एंगेजमेंट लेटर के इशू है, engagement letter not taken on record, or if even taken on record not signed by the proper authority. अब proper authority के बाद में अगर मान लीजिए कि audit committee वगैरह में है, तो audit committee के अगर chairman का साइन कर रहे हैं ये सब कर रहे listed company वगैरह में, तो at least a resolution should also be there कि he is authorized on behalf of that committee to sign on that behalf. या मान लीजिए नॉर्मल कंपनीज वगैरह में भी होता है. आप हंस रहे होंगे कि why I am saying this, but that is also there in the standards on auditing. The person who is agreeing to the terms of engagement on behalf of the client, if he is not competent enough to sign and agree on behalf of the company, तो सर वो वाली बात है कि अगर अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के पास ही अपॉइंटमेंट देने की ये पावर नहीं है, तो हाउ कैन यू से दैट यू आर अपॉइंटेड. लाइकवाइज if simple example, if I take that, in case of auditors the appointment is generally done in AGM, save and except the case of casual vacancies वगैरह, then to be ratified by the in the AGM सर. ठीक है सर. अब मान लीजिए अगर बोर्ड का कोई डायरेक्टर बिना AGM किए मेरे को डायरेक्टली अपॉइंट कर देता, तो कैन यू से दैट अपॉइंटमेंट इज वैलिड? येस और नो? इट्स नॉट अ केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी और नॉट फर्स्ट ईयर ऑडिट, बट कैन वी से दैट इट इज डन?
although taking cue from the resolution passed in the AGM authorizing the director, any of the board or the directors to this appointment is done, अपने को audit appointment मिलता है, ठीक है सर. Now likewise I draw a parallel reference to the engagement letters. Engagement letter has to be compulsory signed by the client. तो सर ये लेटर जो है अपॉइंटमेंट लेटर, ओके दिस बैटरी टैग टू काज कोर्स, सॉरी फॉर द goof up. हाँ, so the engagement letter is there. Now sir, if I draw your attention to the engagement letter, at the end it's there, yes we hereby accept the above terms and conditions, that is there ना सर. अब उस पर सिग्नेचर वाला देखिएगा कौन साइन कर रहा है. इवन इफ अ डायरेक्टर इज डूइंग, एटलीस्ट इंश्योर दैट कि जो है एक बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी वगैरह लीजिए. जब प्रॉब्लम नहीं है तब प्रॉब्लम नहीं होती है सर. लेकिन अगर कोई बोल दे कि ही इज नॉट ऑथराइज्ड और द बोर्ड हैज नॉट ऑथराइज्ड हिम टू साइन ऑन आवर बिहाफ, मान लीजिए स्मॉलर कंपनीज में तो कितनी बार जो है ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मैनेजमेंट का, एंड समटाइम्स इट हैज़ बीन सीन, अ प्रॉब्लम हैज़ बीन सीन इन दिस रिगार्ड, एंड दैट इज वाई स्टैंडर्ड्स में पहले भी बोला हुआ है अथॉरिटी शुड बी ऑल्सो बी गिवन and seen ki who is signing. Okay, so coming back to this, and I take also reference of SA 320 vis-a-vis 315 sir. यहाँ पे जो aspect है it's related to materiality. Now you say कि materiality is an important aspect sir. Do I agree or not? Or do you agree or not? Materiality is an important in terms of audit. Yes or no? ठीक है sir. Although with the coming era it is expected कि materiality वाला नहीं 100% verification हो, which is still now not possible, but with the coming of the age and all those tools and all those, the regulators and the stakeholders do expect कि आप materiality की नहीं 100% checking कीजिए, but we cannot do the same given various embargoes there too and the timelines. तो अब ये देखिए कि we do an audit expressing the financial statements, whether the financial statements give the information as required in terms of the Companies Act. If I am only restricting myself to Companies Act, correct sir? Basis for opinion paragraph में we hereby state that the financial statements give the information as required in terms of the Companies Act 2013, and the financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principle generally accepted in India लिखते हैं. अब मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ generally accepted in India की जगह as far as the paragraph number 25B of SA 700 is concerned, read with A24. I'll come to that, but just I'm giving reference. In those cases, it is stated that you should not just write generally accepted principle. वहाँ पे जो लिखना है in conformity with the accounting standard specified 133 of the Companies Act. Why so? Because applicable financial reporting framework क्या है सर उस केस में? Companies Act का Schedule 3 का requirement है. रेड विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से एप्लीकेबल है फॉर द कंपनी सर? प्लीज एनीवन कैन हेल्प मी आउट. कंपनीज के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है? क्वेश्चन कुछ अटपटा लग रहा है ना सर? कंपनीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज देयर, मैंडेटरी इज देयर. ओके, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे आर एप्लीकेबल टू द कंपनीज? Ind AS and AS. AS issued by ICI? Yes and no? No. No, it is recommended by ICI and now NEFRA in that case and notified by MCA. It's प्लीज सर ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसीलिए कितनी बार आप देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी देखेंगे बेसिस फॉर प्रिपरेशन वहां पे लिख दिया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन टर्म्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICI rather than that एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 एप्लीकेबल है ना सर? 6 है ना? 21 है. ध्यान रखिएगा, अभी भी कितनी जगह पे कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 चल रहा है और वो क्लैरिकल एरर नहीं है, मेजर एरर है सर, शिफ्ट है. दैट इज वाई एज एन ऑडिटर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम कमिंग बैक टू दिस ऐसे का रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्लानिंग के स्टेज में यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है. शेड्यूल 3 तो है ही है, ठीक है, शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 है, डिवीजन 2 एज द केस में भी. लाइकवाइज उसके ऊपर AS एप्लीकेबल है, तो AS एप्लीकेबल है. तो अगर मैं ईयर चेंज कर रहा हूं, जैसे आई टेक देन लीवे ऑफ सेइंग दैट कारो 16 एंड कारो 2020 आर द सेम थिंग सर, या अलग अलग है सर? 70% पीपल विल से आर द सेम, बट कुछ कुछ चेंजेस आए थे सर, ठीक है. सो लाइकवाइज इफ आई से दैट, कैन आई से दैट 2006 का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021 आर वन एंड द सेम सर? नो.
So please understand that, because today we are not going to deal each and every aspect की भाई slide wise I will not go. I'll try to take on a regular practical approaches कहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है, ठीक है, and that creates a massive impact on our deliverables. Please understand that. See, audit working paper is separate set. Okay, when a regulator is coming or your peer reviewer or any other reviewers are coming, they are able to exercise right in checking those documents, ठीक है सर. But once a stakeholder is seeing, stakeholders के लिए what is the final deliverable of an auditor? First and foremost is the financial statement, but we are only verifying the same, and on that we are giving our report कि सही है या गलत है. तो what is the main deliverable of an auditor? It's the audit report. वही सिर्फ हमारा मेन डिलीवरेबल है. अब अगर उसमें गलतियां होंगी, प्राइमा फेसी सामने सामने दिखती है गलतियां होंगी, तो व्हाट विल इंप्रेशन यू हैव ऑन द ऑडिटर पर से सर? व्हाट विल द जनरल पब्लिक हैव? अपने सब कुछ मेहनत सब ठीक कर लियो, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट्स में अगर बहुत ज़्यादा गलतियां दिखती है तो क्या दिखता है कि भाई नेग्लिजेंस है. हर चीज़ को क्लैरिकल एरर नहीं बोल सकते, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. द एस्पेक्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट, the accounting standard rules which I am talking about, if you remember correctly, report on other matters and other regulatory aspects है ना, other regulatory requirements. Audit report के अंदर में लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट सेक्शन जो है, report on other legal and regulatory requirements, that is the paragraph nomenclature sir. In that you see the financial statements are in agreement with the books of accounts, and so the financial statement नहीं बोलता है, वहाँ पे बोलता है the components का नाम लिखता है. The balance sheet, the cash flow statement, the profit and loss account are in agreement with the books of accounts, and second में the financial statements are in compliance with the accounting standards. सिर्फ वहाँ पे अगर मैं गलत लिख दूँ, accounting standard rules 2006 लिख दूँ और मान लीजिए 21 है, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. अब वहाँ पे तो जनरली since institute has given the format, तो we are writing accounting standard rules 2016 की जगह 21 की जगह we are writing accounting standards specified under section 133 of the act read with company rule 7 of the company's accounts rule 2014, if I am not wrong, यही words है, ठीक है सर. However, financial statements में कंपनी अगर लिखती है the financial statements are prepared in terms of company's accounts rules 2006, तो क्या हुआ सर? अपने ओपिनियन दे रहे हैं कि कंपनी ने बना रखा है 21 के हिसाब से और वो सही है. आपको छोटा बात लग रहा है सर, इसमें डिसिप्लिनरी मैटर्स में जाते हैं ये सब एस्पेक्ट्स के, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी ग्रॉस नेग्लिजेंस एंड नॉट, वी कैन नॉट टर्म इट कि क्लैरिकल एरर्स है. दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दिस. इट्स छोटे चीज लगती है बट बहुत गंभीर बात हो जाती है, ठीक है. दैट इज व्हाई आई वाज ट्राइंग टू ब्रिंग. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दोज रेफरेंसेज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वी कैन नॉट से दैट, और we need to understand whatever we are mentioning in the audit report, it is not just mentioning something and getting it signed and the audit is complete. That is our main deliverable and it has to flow from the working papers अपने पास जो आ रहे हैं, अपने को substantiate करने हैं. कैसे आते हैं on the later aspect, we'll deal with that. Okay, one more aspect was there regarding materiality which I was talking about. So we give a statement that the financial statement give a true and fair view, and then we are also to evaluate on what basis that the financial statement are not materially misstated sir, ठीक है. अब materially and misstated, ठीक है sir. So any idea misstatement, if I say what does misstatement mean in financial statement sir? Suppose for a company having turnover of 1 crore rupees, ठीक है, misstatement can be 1,000 rupees, 1 lakh rupees also, and for a company having turnover of 5 lakh rupees, misstatement can be 10,000 rupees also. For a company having turnover of suppose say 1,000 crore rupees, 1 लाख रुपए का मेटेरियलिटी हो सकता है क्या? तो that means from the stakeholders angle, or if we see to that, when the company changes, the aspect of materiality also changes sir. That is there in the standards, ये सब है, and that is why institute does recognize the same, that for each and every client, for each and every nature also, suppose even you can say फिर कि मान लीजिए लिस्टेड कंपनी का अगर मेटेरियलिटी थ्रेशोल्ड है ऑफ द सेम टर्नओवर एंड एन अनलिस्टेड का सेम टर्नओवर ली गए, तो मेटेरियलिटी एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे तो लिस्टेड वाले का मेटेरियलिटी थ्रेशोल्ड आप कम रखेंगे. वाई सो? बिकॉज स्टेक होल्डर्स उसमें जो है ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, एंड दैट इज सीन इन टर्म्स ऑफ द यूजर विच आर देयर. उनके लिए कितना मेटेरियल है इन जनरल पार्लेंस, नॉट फॉर एवरी यूजर्स वी कैन डिफाइन इट, बट ऑन जनरल पार्लेंस अपने लगते हैं, ठीक है. सो मिसस्टेटमेंट्स कैन ओनली मीन द टर्म्स ऑफ फिगर्स क्या सर, या इट कैन बी इन एनी अदर फॉर्म? Okay,
I take this example. Suppose there's a financial statement, ठीक है, न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी है सर, मान लीजिए, ठीक है, एंड द कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 5 crore rupees एंड हैविंग दे हैव ब्रॉट अ लैंड समवेयर एंड 2 महीना पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है. फाइन विद दैट सर, दे कम टू यू, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, ठीक है सर. नाउ व्हाट द अकाउंटेंट इज ऑल्सो न्यूअर वन, जस्ट ग्रेजुएटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता था, शेड्यूल 3 कहाँ सर बनाना था, ठीक है, ही हैज प्रिपेयर्ड द सेम. अब उसने क्या गलती की, शेयर कैपिटल 5 crore, ठीक है, और जो ये है एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स वगैरह है, फिक्स एसेट्स को फिक्स एसेट्स में नहीं लिख के उसने करंट एसेट्स में लिख दिया, ठीक है, 5 crore ऊपर 5 crore नीचे. बैलेंस शीट टैली हो गई सर, बैलेंस शीट टैली हो गई तो सब कुछ सही है सर. मिसस्टेटमेंट तो कहीं नहीं है ना इसमें कि है कुछ मिसस्टेटमेंट. क्या चेंज हो गया सर? एसेट का नेचर चेंज हो गया. एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? और रादर आई कैन से द क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन, द एग्जैक्ट वर्ड सर हैज राइटली पॉइंटेड आउट कि नेचर चेंज हो गया, बिकॉज नेचर तो भाई लॉन्ग टर्म एसेट्स का करंट नॉन करंट का गड़बड़ाया, क्लासिफिकेशन वगैरह चेंज हो गए सर, ठीक है. एंड इफ आई से दैट, चलिए वो क्लासिफिकेशन चेंज नहीं हुआ, सपोज फिक्स एसेट्स में ही डाला, ठीक है. नाउ इफ आई से दैट सिर्फ क्लासिफिकेशन एरर की जगह, तो दैट मीन्स अगर मिसस्टेटमेंट की बात की जाए तो मिसस्टेटमेंट कैन बी इन अमाउंट टर्म्स ऑल्सो, क्लासिफिकेशन टर्म्स ऑल्सो, ठीक है. एंड सपोज आई से इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, what this accountant did was he debited the entire amount to the P&L as expenditure, ठीक है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो प्रॉफिट एंड लॉस में 5 crore का लॉस दिखा दिया, ऊपर नीचे मैच करके 0-0 करके निकल गया, ठीक है. मेटरलिटी गलती हुई. अब देखिए सर, इसमें क्लासिफिकेशंस की गलती हुई, डिस्क्लोजर्स की गलती हुई, अमाउंट की गलती भी हुई, ठीक है. सो प्लीज अंडरस्टैंड the aspect of misstatement is not only in terms of the amount or the qualitative factor is also there sir, not only quantitative. And this I am not saying sir, SA 450 evaluation of misstatements वगैरह जो हैं, ठीक है सर, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज वगैरह जो है ऐसे 330 बोलता है, और 450 में जो मिसस्टेटमेंट्स जो आइडेंटिफाइड वगैरह उसके केस में उसका पैराग्राफ 4 इज डिफाइनिंग मिसस्टेटमेंट्स. And misstatements are of 4 kinds as per the standards on auditing: presentation, amount, हो सकता है आप लोग के लिए repetitive लग रहा हो, I have also stated earlier but this is important, classification and disclosure. And as an auditor sometimes we only restrict ourselves कि ट्रायल बैलेंस वगैरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फिगर्स गलत है तो उसके कारण मिसस्टेटमेंट है. नहीं सर, क्लासिफिकेशंस वगैरह भी या डिस्क्लोजर्स वगैरह की अगर प्रॉब्लम नहीं है, सपोज डिस्क्लोजर क्या सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट इज ओनली द डिस्क्लोजर, और कैन आई से द अदर इन्फॉर्मेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल्सो डिस्क्लोजर सर? अदर इज ऑल्सो डिस्क्लोजर. तो सपोज द कंपनी वॉज हैविंग एवरीथिंग इज डन करेक्टली सर, ठीक है, 5 crore का एसेट था, फिक्स एसेट था, 5 crore दिखाया, शेयर कैपिटल 5 crore दिखाया, एवरीथिंग डन. कंटिजेंट लायबिलिटी थी सर 10 crore की, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया ही नहीं. फाइन विद दैट सर? नो, वाई सर? बैलेंस शीट पे तो इंपैक्ट आ नहीं रहा, डिस्क्लोजर नहीं हुआ. सो एज एन ऑडिटर, सी वी आर नॉट द प्रिपेयरर्स, वी कैन नॉट बी द प्रिपेयरर्स. आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है. वी आर टू चेक द ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स एंड इन केस देयर आर मिसस्टेटमेंट्स या गलतियां हैं तो वी आर टू एडवाइज द क्लाइंट टू मेक करेक्शंस इन दिस रिगार्ड, ठीक है. तो मिसस्टेटमेंट का मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगे, विल आस्क देम टू रेक्टिफाई द सेम. सो वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू गेट, जो भी मिसस्टेटमेंट्स हुआ वी नीड टू नोट इट डाउन, ठीक है. तो एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वी नीड टू नोट इट डाउन, एंड दैट इज वाई प्रॉब्लम्स आती है. वर्बली तो क्लाइंट को बोल लिए जाते हैं या मेल्स पे बोल लिए जाते हैं, कितनी बार अपने कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, एक जगह जॉट डाउन नहीं कर पाते हैं. तो कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट इज ऑल्सो पिवोटल इन टर्म्स ऑफ ऐसे 260 265 अपने कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि ये मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई किए, एंड देयर आफ्टर वी नीड टू सी वेदर क्लाइंट हैज करेक्टेड और नॉट. इफ नॉट करेक्टेड देन वी नीड टू सी मटेरियल है या नहीं है. करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग और राइट सर. ये अपने कर भी रहे हैं, जस्ट दैट उसको डॉक्यूमेंट तरीके से करना पड़ेगा अपने को. मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई हुई, ठीक है,
फाइनेंशियल्स के अकाउंट बैलेंसेस के अंदर हुई तो अपने संगे संग बोलते हैं उसको रेक्टिफाई करवा देते हैं, खत्म हुआ बात, अपने नोट डाउन कितनी बार करना भूल जाते हैं. बट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इट इज सेट वॉट एवर यू आर identified kindly note it down, even if rectified kindly note it down and ensure that that has been communicated in some or the other manner. verbal है तो उनको बोल दीजिए, एटलीस्ट अपने नोट डाउन में रख लीजिए कि इसको फलाना तारीख को हमने बता दिया था. दैट इज ऑल्सो देयर इन द स्टैंडर्ड्स सेइंग दैट इवन में कम्युनिकेटेड वर्बली आपको एक नोट डाउन कर लेना है और बाद में कभी क्लाइंट से साइन ऑफ वगैरह ले लीजिएगा, सो दैट इट बिकम्स एन एविडेंस इन दिस रिगार्ड. इवन कम्युनिकेशन थ्रू मेल इज ऑल्सो पॉसिबल, बट प्रोवाइडेड मैनेजमेंट सिर्फ अकाउंटेंट को देने से नहीं होगा. कम्युनिकेशन इज विद द TCWG और द मैनेजमेंट पर से. तो कितनी बार सिर्फ अकाउंटेंट को एरर्स बता देते हैं अपने, जनरली तो वो होता है, या अकाउंट्स इंचार्ज वगैरह के डिपार्टमेंट को बता देते हैं, बट वेदर ही इज इन द फॉलोइंग विद द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट और नॉट, तो वहाँ पे अपने कितनी बार प्रैक्टिकली फेल कर जाते हैं. तो दैट इज वाई इवन अ CC विल ऑल्सो हेल्प एंड सर्व दैट पर्पज. सो दैट इज नॉट देयर कि आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन रखना है, पूरा साइन ऑफ लेना है, बट इट शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू देम एंड वी नीड टू इंश्योर दैट. बिकॉज वहाँ अगर आप सिर्फ अकाउंटेंट को दे के रख देंगे सब कुछ भी तो प्रॉब्लम्स है, बिकॉज वहाँ पे एंड दिस वाई आई एम नॉट सेइंग आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस, बट दैट इज वॉट also the other disciplinary aspects, NEFRA findings are also there, then your FRRB findings, QRB findings are there in this regard, sir. So I am making it a practical oriented session, so that because इस session के अंदर में I can go on talking about 3 hours, don't worry, slides है, don't worry, I am having slides, but on practical aspects आपको ही समझा रहा हूँ, we need to take care of that. So now the thing is misstatements, PACD तो हो गया, अब material है कि नहीं, again how will you determine materiality, sir? मिसस्टेटमेंट्स है, क्लाइंट ने आपने बताया, क्लाइंट ने करेक्ट नहीं किया, तो कैन यू विल यू डायरेक्टली क्वालिफाई द रिपोर्ट और शुड यू क्वालिफाई द रिपोर्ट? सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव. अब मेटलिटी क्या है सर? कहाँ लिखा है? लिखा तो है सर ऐसे 320 वगैरह में लिखा है, कैसे निकालना है सर? 5% ले लेंगे, ठीक है सर 5% ले लीजिए, अपने बोलते हैं, बट कहीं तो लिखेंगे एटलीस्ट. दैट इज वाई इंस्टीट्यूट इज हार्पिंग अपॉन, देयर आर टेम्पलेट्स, उसके हिसाब से आप मेटलिटी का लेवल डिटरमाइन कर लीजिए, ऑन व्हाट बेसिस दोस मेटलिटी आर देयर. देयर आर टेम्पलेट्स सर, डोंट वरी, CAQ is having excellent template on metality and all those aspects. Post this session I'll try to share those resources also, don't worry. So it's not that there is ample amount of working paper templates given by ICAI sir. ऐसा नहीं है 400 400 500 500 पन्ने के अलग से चेकलिस्ट है, एक नहीं है. SMP प्रैक्टिशनर्स के लिए और अलग से हैं. MRL के लिए रिसेंटली 6 महीना पहले भी जो इंस्टीट्यूट का पब्लिकेशन आया ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ MRL, AASB has come up with an excellent kind of MRLs they have come with. Engagement letter again CAQD templates are there. So it is not that कि we need to prepare, everything is given, but हमको बैठ के थोड़ा modify करना पड़ेगा. Just like in the case of peer reviews and all those, वो जो है आपका manuals आते थे, SQC manuals and all those जो है, तो डायरेक्ट तो कॉपी पेस्ट नहीं होता है. या इनफैक्ट वो छोड़िए ना सर, ऑडिट रिपोर्ट आती है तो क्या आपने डायरेक्टली एक ही ऑडिट रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट करके निकालते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एटलीस्ट द क्लाइंट का नेम, ईयर एंड सो फोर्थ, वी मेक द चेंजेस ना. So likewise checklists are there, these are there, but it is up to us to modify in our relevance and start working on that. That is why this, don't worry, ये सब दे दिए जाएंगे. I am not getting into the formats as of now because it will then delineate us from the topic which we are dealing with. But please understand, metality determination of paramount importance and QRB, FRRB findings are saying that metality बोल देते हैं, कहीं लिखा नहीं है. At least एक कागज रहेगा तो आपको हेल्प करेगा, because सैम्पलिंग उसके बेसिस पे होता है. अगर मेटलिटी आप डिफाइन नहीं कर पाते हैं, बोलते हैं हर चीज़ से हम लोग सैम्पलिंग लिए, तो सैम्पलिंग कैसे लिए सर? ये सब में प्रॉब्लम्स आती हैं. रैंडम सैंपल भी लिए तो मेटलिटी के ऊपर लिए तो उसका कागज़ रखने से बस हो जाएगा काम, लेकिन थोड़ा सा अपने को मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है. सो AS I am not going into it, I think sir will. And the statutory audit life cycle, I'll just like to take, because बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो जाता है बोलते बोलते, आप लोग के लिए भी सुनते सुनते. सो जस्ट अ मिनट, just tell me if that is visible at the back sir, just let me know. It's definitely not just about in the scenes during a, but okay, so have you ever really wondered what goes on behind the scenes during a big corporate audit? It's definitely not just about crunching numbers. We're about to go on a quick 5-minute journey to unpack the whole process, from the very first handshake to the final official verdict. Yeah, you know those intense interrogation scenes you see in movies? You can pretty much forget all that. An audit is way less about finding a bad guy and a lot more like a financial health checkup. Let's get into it. I want you to think of the auditor as a kind of financial doctor,
sure everything is as healthy as it looks on paper. So, what's the whole point of this financial checkup anyway? Well, it's not about catching every single typo or misplaced comma. The real goal is to provide something called reasonable assurance. Real goal is to give a reasonable assurance, sir. Correct, sir? And just a rider, yes, not prepared by me, prepared by AI. ठीक है, इसमें एक दो गलतियां भी है, मैं बताऊंगा आपको. AI को बोला बनाया, बट उसमें एक दो गलतियां भी किया है इसने, मैं आपको बताऊंगा. Now pay close attention to that phrase, reasonable assurance. This is super important. It's not a 100% ironclad guarantee. It's a high level of confidence that the financial statements aren't misleading in a way that would actually make a decision maker change their mind. Before a single number even gets looked at, the whole journey kicks off with a really critical first step, what I like to call the pre-audit handshake. This is all about laying down the ground rules for an ethical and effective audit. This whole phase is kind of like a three-step. सो दिस इज टॉकिंग अबाउट द वेरियस स्टेप्स. अपॉइंटमेंट वगैरह होता है, अपॉइंटमेंट के साथ साथ में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू सी क्लाइंट को एक्सेप्ट करे या नहीं करे. द एसक्यूसी पार्ट्स विच यू आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज वाई टेक इंडिपेंडेंस कन्फर्मेशंस फ्रॉम योर टीम. वंस द क्लाइंट्स अप्रोचेज यू, एटलीस्ट आप हाँ तो डायरेक्टली नहीं करते हैं, ठीक है, एटलीस्ट यू मेक सर्टन कैलकुलेशंस, क्लाइंट के बारे में चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, कुछ करते हैं. वी आर डूइंग इट बट वी आर अनेबल टू डॉक्यूमेंट. दैट इज वाई एसक्यूसी इज सेइंग बिफोर एक्सेप्टिंग द क्लाइंट एटलीस्ट हैव दोस client acceptance documents on record with you to substantiate whether you are capable enough or whether you want to take that client or not, why you are rejecting the client in that manner. accept कर रहे हैं तो भी, reject कर रहे हैं तो भी क्या grounds हैं. and इसके भी formats अभी से नहीं सर, 2009 से available हैं, 2009 से. और अभी से, and that is a mandatory aspect, let me tell you, it's not that कि 2013 से आया था, that was mandatory since 2009 itself. ठीक है, so not getting more into this, so that is what after that you accept, you arrive at the decision whether to accept the client or not. You go for the appointment process. appointment के बाद में साथ ही साथ में आप engagement letters वगैरह साइन कराते हैं. करेक्ट सर? Yes. First, auditors have to make sure they're completely independent. No conflicts of interest, none at all. Then, Why independent, sir? First and foremost, please understand, our report is not just audit report. It is independent auditor's report. आप एक और छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा फॉर योर इन्फॉर्मेशन. समटाइम्स यू विल सी वी आर मेंशन ऑन द टॉप ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, समटाइम्स यू विल सी ऑडिटर्स रिपोर्ट सिर्फ लिखा हुआ है, जबकि रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. एंड द रेलेवेंस ऑफ दैट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस सर. अगर वो वर्ड मिसिंग है, लोग बोलेंगे कि जनरल पार्लेंस में तो वी आर सेइंग ऑडिटर्स रिपोर्ट ओनली. व्हाई? बिकॉज एवरीवन अंडरस्टैंड्स बाय ऑडिटर्स वी मीन्स ही इज इंडिपेंडेंट. It goes hand in hand. Just like as auditors we are saying, तो उनको पता है कि trust is there, credibility of that profession is there. Likewise, auditor means independence, but institute has assured कि नहीं, ऐसे 700 बोलता है कि आपको independent word भी वहाँ जोड़ना है, और अगर नहीं है आपके रिपोर्ट्स में, पूरा का पूरा रिपोर्ट सही भी है, तो वहाँ पे आपको नेग्लिजेंस माना जा रहा है, क्लरिकल एरर नहीं मानी जा रही है, नेग्लिजेंस माना जा रहा है. नेफ्रा एंड QRB आर टेकिंग दिस एज नेग्लिजेंस एंड नॉट क्लरिकल एरर्स. सो इवन द वेरी टॉप title, and that is also specified in the standards on auditing, that should be independent auditor's report and not just auditor's report. Yes. actually vet the client. Is the leadership team trustworthy? And finally, the engagement letter gets signed, which basically seals the deal and lays out exactly what the audit will cover. All right, so the stage is set. Now it's time to draw up the map. Post the acceptance. This phase is all about strategy. It's about creating a detailed blueprint to guide the auditors. Planning phase. A pretty complex financial maze. Just think about it. A doctor wouldn't just start ordering a bunch of random tests, right? Same thing here. Auditors don't just dive in blindly. They create a diagnostic plan to pinpoint the high-risk areas where any financial symptoms might be hiding. To really focus their efforts, auditors वी आर डूइंग दिस. ऑडिट टीम कंपोज होती है, उसके बाद अपने बोलते हैं ये चेक कर लेना, ऐसे चेक कर लेना, वैसे करना. वी आर गिविंग दम इंस्ट्रक्शंस. करेक्ट सर? ऐसा तो नहीं है कि टीम गई अपने आप चालू करते हैं. वी आर गिविंग दम इंस्ट्रक्शंस at the back of the mind, because we have calculated something and we have asserted something with our experience and prior experience with the client and all those cases. Just that we are not able to document it in a manner saying that कि प्लानिंग वाला टाइम हुआ कि नहीं हुआ, या जो टीम जा रही है उसके साथ में कुछ डिस्कशन हुआ कि नहीं हुआ. वो इंस्टीट्यूट बोलता है कि उसका छोटा सा भी डॉक्यूमेंटेशन करके रख ले, टीम कॉम्पोजिशन ये था, उनको फलाना फलाना चीज़ हमने बताया, और किस बेसिस पे हमने जो है प्लानिंग का स्टार्ट किया, उसका कुछ एक डॉक्यूमेंट रख ले, तो योर प्लानिंग स्टेज का ऐसे 300 का वर्क इज ऑल्सो कंप्लीट इन दिस रिगार्ड. उसके फॉर्मेट्स भी दिए गए हैं, ठीक है. एंड दैट दोज प्रोसीजर विल हाईली बी डिपेंडेंट ऑन द मेटलिटी एस्पेक्ट ऑल्सो. सो मेटलिटी डिटर्मिनेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस.
बट प्लानिंग स्टेज के लिए मेटेरियलिटी अलग निकलते, दैट इज वाई इन द मेटेरियलिटी टेम्पलेट ऑल्सो यू विल सी एक प्लानिंग मेटेरियलिटी बोलते हैं और एक फाइनल मेटेरियलिटी बोलते हैं, बट प्लानिंग मेटेरियलिटी प्लेज अ पिवोटल पार्ट इन एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ द ऑडिट. बाद में पता चला कि फाइनेंशियल्स में बहुत ज़्यादा गलतियाँ निकली, चेंजेस हो गए, तो मेरा मेटेरियलिटी लेवल तो पूरा चेंज हो गया, तो दैट डजंट मीन कि मेरा मेटेरियलिटी गलत डिटरमाइन हुआ. ठीक है, बिकॉज एट द प्लानिंग स्टेज द थिंग्स वर डिफरेंट, बट यू विल हैव टू मेक अ नोट ऑफ दैट. दैट इज आई एम नॉट सेइंग सर स्टैंडर्ड्स बोलता है नहीं भी हो पाए फाइन विद दैट, लेकिन मेटेरियलिटी का चालू तो करना पड़ेगा अपने को. सो नाउ लेट मी टेल यू वन छोटा सा एग्जांपल. ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स था क्लाइंट का, इट वाज सपोज 7 करोड़ के आसपास का क्लाइंट का टर्नओवर था व्हेन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स केम टू अस. फाइनेंशियल्स बोल लीजिए, टैली डेटा बोल लीजिए, एज द केस में भी. ठीक है सर. And on that basis, instead of taking the previous year's figure, because previous years में उनका turnover was hardly any 2.5 crore something like that, तो we thought it fit कि previous year का turnover और current year का figure का turnover में बहुत ज़्यादा massive differences हैं, तो maturity level last year से नहीं लेके हम लोग draft financial से लेंगे. I can do that? Yes or no? But I have to mention it कि last year का नहीं लिया, current year का लिया, तो उसका rationale है कि I have to mention that. Correct sir? Now during the course of audit, it was seen that 2 करोड़ के ऊपर के जो रिसीवेबल्स थे, ठीक है सर, वो कट ऑफ प्रोसीजर्स प्रॉपर नहीं था. डिलीवरी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो टुक प्लेस आफ्टरवर्ड्स. एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ परचेज ऑर्डर के बेसिस पे क्लाइंट हैड बुक्ड द रेवेन्यू. वाज इट अ करेक्ट एक्सरसाइज? आई एम सेइंग आउट ऑफ द 7 करोड़ रेवेन्यू विच द क्लाइंट हैड बुक्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, इट वॉज फाउंड बाय अस that don't worry, I am not divulging any client confidential declaration. मैं कोई भी I am not breaching anything in this regard. ठीक है, so don't worry regarding that. मेरा बोलना जरूरी था सर, because sometimes it happens that whether you are breaching those aspects or not. So please understand. 2 करोड़ के आसपास we found that कि रेवेन्यू जो है inflated है, because परचेज ऑर्डर के बेसिस पे ही क्लाइंट ने रेवेन्यू बुक कर लिया था, because to meet certain targets of the टेंडरिंग रिक्वायरमेंट वहाँ पे ये था कि ऑर्डर ऑन हैंड. ये पकड़ में आया था इनिशियली ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ बोल रहा था कि सर टर्नओवर सर्टिफिकेट भी लगेगा, मोटा मोटी है इसके हिसाब से, तो और डिटेल में गए. ठीक है, फाइनेंशियल्स का तो काम चल रहा था, चलो उस समय प्रिपरेशन हो रहा था, तब जाके उसी समय पकड़ में आ गया था. तो अब मान लीजिए मेरा मेटेरियलिटी लेवल डिटरमाइन हो गया था, पूरा का पूरा वर्किंग पेपर बन गया था, तो मेरा वर्किंग पेपर तो 7 करोड़ के हिसाब से बन गया होगा. ठीक है, बट इफ दोज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एंड इफ इट इज फाउंड दैट द डिपेंडेंट अंडरलाइंग एस्पेक्ट्स आर चेंजिंग, तो मेरा मेटेरियलिटी डॉक्यूमेंट चेंज होगा कि नहीं होगा सर? ठीक है, होगा. अब मैं दूसरा एस्पेक्ट पे आता हूँ. लेट मी टेल यू, इन टर्म्स ऑफ QRB और नेफ्रा रिव्यूज इट वाज फाउंड दैट मेटेरियलिटी टेम्पलेट बना ही नहीं था. ठीक है सर. ड्राफ्ट फाइनेंशियल से आया, आई एम अगेन टेकिंग दिस एग्जाम्पल. मान लीजिए ड्राफ्ट फाइनेंशियल से आया, QRB और नेफ्रा का रिव्यूज वगैरह चल रहा था, मेटेरियलिटी टेम्पलेट बना ही नहीं था. ठीक है, अब वो देखा कि मेटेरियलिटी टेम्पलेट बनाना है, प्लानिंग स्टेज का भी मेटेरियलिटी बनाना है, बोला ठीक है प्लानिंग स्टेज का भी बनाएंगे, फाइनेंस स्टेज का भी बनाएंगे, किसको क्या पता चलने वाला है. ठीक है, उनके पास एक अलग से ड्राफ्ट फाइनेंशियल रिसीव का अलग से कॉलम था, जिसके बेसिस पे बोले कि हम बनाएंगे. दे ऑट टू हैव प्रिपेयर्ड द मेटेरियलिटी टेम्पलेट, बट गलती से क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फाइनल वाला फिगर्स था उसके बेसिस पे मेटेरियलिटी टेम्पलेट बना दिया प्लानिंग स्टेज का. तो 5 करोड़ के हिसाब से बोला कि प्लानिंग स्टेज में ड्राफ्ट फाइनेंशियल के हिसाब से आया है, और फाइनल वाले में भी 5 करोड़ के हिसाब से बना ही दिया. तो गलती क्या हुआ, बिकॉज प्लानिंग स्टेज का बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनलाइज हुआ उसके बेसिस पे नहीं बनता. इट इज नॉट एन आफ्टर थॉट डॉक्यूमेंट, इट इज प्रिपेयर्ड आइदर प्रीवियस ईयर बेसिस या उसका एवरेज पे या फिर ड्राफ्ट बेसिस के ऊपर में बनता है. आई थिंक आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर. इट इज नॉट एन आफ्टर थॉट थिंग सर. ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा बन गया उसके बाद बैठ के चालू करो यार मेटेरियलिटी का 4 फिगर ही तो डालना है, उल्टा डालना है, ये नहीं करना है सर. दैट माइट बी द केस कि हाँ चलिए कोई टर्नओवर में चेंज नहीं हुआ तो दैट कुड हैव गॉन थ्रू, बट इसके केस में ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने दिखा, फिगर अलग था, प्लानिंग स्टेज का मेटेरियलिटी वहीं पे वहीं धराशायी हो गया, एंड इजीली इट वाज फाउंड दैट देयर वाज एन आफ्टर थॉट. और उसके खिलाफ जो है नेफ्रा वेंट बोंकस कि भाई यू आर फजिंग द वर्किंग पेपर्स. सामने सामने दिख गया, छोटा सा चीज़ है, कितने बार लोगों को नोटिस में ही नहीं आता, डॉक्यूमेंट तो बनाना था, तो नकल में अकल करने की दरकार पड़ती है कभी कभी. आई एम नॉट एडवोकेटिंग दिस इन एनी मैनर बट लेटिंग यू नो. Okay. Yes. Proceeding ahead. Concept called materiality. The easiest way to think of it is as a filter. They're not looking for every single lost penny. They're hunting for errors that are big enough to potentially change an investor's decision. So what does that look like in the real world? Well, for a company of a certain size, materiality threshold might get set at, say, $50,000. And that number becomes the auditor's guidepost. Any potential error that's less than $50,000 might just be a small note, but anything above it, whoa, that's a red flag that demands a much, much closer look.
not just about honest mistakes. Oh no. Auditors are also actively on the hunt for fraud. They literally hold brainstorming sessions where they try to think like a criminal to figure out all the clever ways someone might try to cook the books. And they're typically looking for two main types of financial crime. One is cooking the books to fool investors, and the other is just straight up theft, stealing assets. The audit is designed to sniff out both. Okay, with the battle plan locked in, it's time for the real investigation to begin. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट इन्वेस्टिगेटर्स. तो ये मैंने जो आपको एरर बोल रहा था उसमें एक एरर है कि यहाँ पे ये बोल रहा है फॉर द रियल इन्वेस्टिगेशन टू बिगिन. ऑडिटर्स आर नॉट इन्वेस्टिगेटर्स इन एनी मैनर. लेकिन ये अपना वीडियो बनाना है तो वीडियो को बना के निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एआई है सर, देखना पड़ेगा, अपने को ध्यान रखना पड़ता है कभी कभी चीज़. This is where the auditors roll up their sleeves and get their hands dirty, gathering all the evidence they need to support their final conclusion. So what's on their checklist? Well, they're verifying that the sales are real, that the cash reported in the bank actually exists, and that the inventory listed on the books matches what's physically in the warehouse. They're also basically stress testing the company's own internal financial safeguards. And this isn't guesswork. Not at all. Every single move the auditors make is documented in what are called audit working papers, which creates this incredibly detailed, bulletproof record of their entire investigation. Audit, not So investigation. after all the evidence is in, it's time for the moment of truth. The big finale of the entire audit is that final report. It's the auditor's professional verdict on the company's financial Verdict, final verdict. And that verdict usually comes in one of three flavors. An unmodified opinion, that's a gold star, a clean bill of health. A qualified opinion is kind of like a mostly good, but in an adverse opinion, that's a 5-alarm fire. It's a major warning that the company's financials just can't be trusted. But wait, the story doesn't quite end with the report. The final chapter is all about closing the books on the audit itself and making sure all that evidence is preserved for years and years to come. So once that report is signed, a clock starts ticking. Auditors get about 60 days to put together the final, complete audit file. Then, it's locked down. तो सर ऑडिट रिपोर्ट के बाद में द 60 डेज टाइमलाइन विच इज टॉकिंग अबाउट, या मान लीजिए यूडिन के अंदर में, दैट इज फॉर द कंपाइलेशन एंड नॉट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स इन एनी मैनर. देखा गया कितनी बार ऑडिट वर्किंग पेपर प्रिपरेशन ऑन और आफ्टर, मतलब आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कैन नॉट टेक प्लेस इन एनी मैनर व्हाटसोएवर. ये ध्यान रखना, इट इज़ ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कंपाइलेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्किंग पेपर्स दैट इज डन. लेकिन नथिंग कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रेश आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. ये चीज़ ध्यान रखना है, और ये सब चीज़ रेगुलेटर्स पकड़ता है तो उसके बाद तकलीफ दे देता है. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई इन लोग बोलते हैं आर्काइवल वर्क का बोलते हैं, बट प्रैक्टिकली एसएमपीज़ को इश्यूज आ रहे हैं. एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग कि आर्काइवल थोड़ा इश्यूज हैं. It's basically a time capsule of financial truth. And there you have it, the entire auditor's journey, from that first handshake all the way to the final archive. It's a really structured process that's designed not to punish, but to build the one thing the financial world absolutely cannot live without: trust. But always remember, an audit offers reasonable assurance, not a bulletproof guarantee. डू यू एग्री सर? इट्स नॉट अ गारंटी. ठीक है, अपने क्या रिपोर्ट में लिखते हैं ऐसा कुछ? एनी आइडिया? येस और नो सर, प्लीज शो ऑफ हैंड्स अगर कर पाए तो बेटर. आर वी राइटिंग एनीथिंग रिगार्डिंग रीजनेबल एश्योरेंस इन द ऑडिट रिपोर्ट? यस, वी आर राइटिंग. ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में वी स्पेसिफिकली स्टेट वी आर, इट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस वी आर प्रोवाइडिंग. एक पैराग्राफ है, वी आर स्पेसिफिकली स्टेटिंग दैट इट्स रीजनेबल एश्योरेंस, एंड इफ देर इज एनी फ्रॉड एरर, विदाउट कंसिडरिंग कि फ्रॉड एरर है, अगर कुछ है तो फिर वो एस्पेक्ट्स हमारे चेंज हो जाएंगे, बट हमारे नॉलेज में कोई फ्रॉड एरर नहीं है. सो दिस वॉज द जर्नी दैट इज नोन टू यू. सो आई एम नॉट गेटिंग द डॉक्यूमेंटेशन एस्पेक्ट की क्या क्या था, बट ऑन अ जेनरिक एस्पेक्ट इफ आई से दैट एंगेजमेंट लेटर्स वाले हो गए, एमआरएल वगैरह के, आई एम सेइंग 530 का 580 का आसपास प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स में एटलीस्ट ऑडिट प्रोग्राम वगैरह का हुआ. मेटलिटी के डॉक्यूमेंटेशंस हो गए. सर्टन एनालिसिस ऑफ वॉट एवर वी हैव डन हमको थोड़ा सा नोट डाउन करना पड़ेगा. एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस के बारे में भी रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे. ओके सर, प्लीज टेल मी, एंड लेट मी टेल यू, फॉर it the audit working paper will also depend on the complexity of the and the nature of the client. It is not that कि सारे clients के लिए लंबा working paper बनेगा. It will also depend from client to client,
I'll be sharing this PPT, so don't worry कि I'm skipping that. I'll be sharing this PPT, don't worry regarding that. ठीक है, तो परमानेंट ऑडिट फाइल्स, करंट ऑडिट फाइल्स, बट इन द केस ऑफ दिस आजकल AI के ज़माने में या कंप्यूटराइजेशन के ज़माने में इसका जो है सेग्रीगेशन थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है बहुत जगह पे, बट द थिंग इज दैट दोज एविडेंसेस शुड बी देयर. एंड लेट मी टेल यू, जस्ट obtaining document from client and stating that to be an audit evidence, can I say the same to be an audit evidence, sir? I have obtained a bank statement for the client, ठीक है, एंड आई हैव वेरीफाइड उसका जो है क्लाइंट का जो ट्रायल बैलेंस में वो बैंक स्टेटमेंट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है. एंड इन माई ऑडिट वर्किंग पेपर व्हाट आई हैव डन व्हेन इट वाज सेड दैट हाउ हैव यू वेरीफाइड द बैंक हाउ हैव यू वेरीफाइड द बैंक बैलेंसेस, आई वाज शोन द बैंक स्टेटमेंट देयर ऑफ. कैन आई से द बैंक स्टेटमेंट इज अ ऑडिट एविडेंस? येस एंड नो? सर पूरा नहीं बोल सकते. इट इज़ अ क्लाइंट जनरेटेड और क्लाइंट प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट. एविडेंस आप तभी बोल पाएंगे व्हेन यू आर एबल टू सब्सटेंशिएट की ऑडिट एविडेंस, तब बोल पाएंगे. उसके ऊपर क्या काम किया आप उसको कोरिलेट करना पड़ेगा साथ में. आपको अजीब लग रहा होगा सर इस सर 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 बैंक से अगर आपको मिल रहा है तो फाइन है, बट मैं बैंक स्टेटमेंट का बात कर रहा हूं सर. बैंक स्टेटमेंट itself, बैंक जस्ट हैविंग अ कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट विथ यू विल नॉट सर्व एज एन ऑडिटर्स एविडेंस. बैंक का कंफर्मेशन सर्टिफिकेट अगर आता है तो दैट इज कॉल्ड एन ऑडिटर्स एविडेंस. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस सर. सत्यम का केस में यही हुआ था. बैंक का स्टेटमेंट वर प्रोवाइडेड एंड ऑडिटर्स रिलाइड ऑन द सेम एंड द प्रोसीजर चेंज देयर आफ्टर. जब एक्चुअल में बैंक से मांगा गया कि बैलेंसेस क्या है, कंफर्मेशन दो, उसके बाद पता चला बैलेंसेस चेंज थे. सो प्लीज अंडरस्टैंड, जस्ट हैविंग बैंक स्टेटमेंट एंड BRS बन गया नहीं है. और इसके केस में मैं सिर्फ ये कंफर्मेशन का एक बार नहीं जाते, स्टेटमेंट भी अगर आपको मिला है तो इफ वॉट एवर द प्रोसीजर्स यू हैव अप्लाइड टू वेरीफाई. अब आप बोलेंगे सर ये क्या मस्ती का बात कर रहे हो, 2 टिक करना है, लेकिन आपने क्या चेक किया वो लिखना है. दैट इज वॉट आवर वर्किंग पेपर इज ऑल अबाउट. दिस इज वॉट यू हैव ऑब्टेन्ड, व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट, आपने कैसे चेक किया और क्या कंक्लूजन आया इस चीज पे. दैट इज वॉट द मेन एस्पेक्ट इज. एंड हम लोग दिमाग में सब रहता है, यही चीज को अपने को 2 लाइन 4 लाइन लिखना है एंड दैट विल सर्व द पर्पस सर. दैट इज व्हाट इंस्टीट्यूट इज हार्पिंग ऑन अगेन एंड अगेन. सो दैट सो प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज वाई. मान लीजिए जो अपने को सेल्स का रजिस्टर दे देते हैं या GST का डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देते हैं, तो क्या वो खाली GST का डॉक्यूमेंट अपने तो वेरीफाई करते हैं? जस्ट दैट अपने बोलते हैं सेल्स का रजिस्टर मिला, हमने वाउचर्स वगैरह से टैली किया, तो किस वाउचर से टैली किया, मोटा मोटी क्या चीज़ टैली करने की चेष्टा की और कुछ एरर्स निकल के आए तो ये स्टेप के निकल के एंड हाउ इट वॉज डेल्ट विथ. ये चारों चीज को कंबाइन करेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू से ना कि कंक्लूजन ये रीच आउट किए या ये वर द वर्किंग प्रोसीजर्स व्हाट यू हैव डन. बिकॉज एज एन ऑडिटर यू नीड टू सब्सटेंशिएट मैंने ऑडिट किया, क्या किया इज ओनली द वर्किंग पेपर विच विल बी एबल टू टेल यू कि आपने क्या किया. दैट इज व्हाट इंस्टीट्यूट इज सेइंग. एंड यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, कागज तो अपने पास सारे मिल जाएंगे उनके, लेकिन अपने ने क्या वर्किंग की उसको जॉट डाउन करना है सर. दैट इज व्हाट the pain point is, and over here that is why bigger firms are able to cater to that because उनके पास resources है. We are understanding, institute is understanding. That is why lesser complex entities के लिए कुछ और भी अभी exposure drafts वगैरह आए थे, उसके अंदर में जो extent of working papers का कुछ जो है relaxations दी गई हैं. It will be coming, but that is not the case. But कुछ तो आपको substantiate करना पड़ेगा. I'm not getting into that because of the paucity of time. But materiality के level पे मैं as I said benchmark आपने जो लिया 5% of the turnover या total assets और as the case में भी, ठीक है, आपने identify कैसे किया, that is a important aspects. I'll just see. So materiality वाले में materiality set retrospectively which I told you, ठीक है, determined at the planning stage, final वाले document से नहीं आएगा, ठीक है. रीजनेबल और 5% ऑफ द PBT अगर आप बोलते भी हैं तो वाई 5% ऑफ द PBT, एक जेनरिक नेचर की, हाँ चलो इस हिसाब से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और प्रॉफिट का हिस्ट्री वगैरह है, उस हिसाब से आपको लिखना पड़ता है. एंड दैट इज द गाइडेंस इज ऑल्सो सेइंग दैट एंड द वर्किंग पेपर रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो सेइंग दैट. उसके बाद में परफॉर्मेंस मेटिलिटी, ओवरऑल मेटिलिटी क्या है, दैट इज देयर. दिस इज वन ऑफ द स्लाइड्स टेकन फ्रॉम ICAI का रेफरेंसेज. वहाँ पे उन लोग बोलते हैं कि अगर हायर रिस्क है और टर्नओवर और एंड लेट मी टेल यू मेटिलिटी एंड रिस्क गोज इनवर्सली. अगर रिस्क ज़्यादा है तो मेटिलिटी लेवल आपको कम लेना पड़ेगा, बिकॉज कम मेटिलिटी लेंगे इसका मतलब ज़्यादा लेवल ऑफ चेकिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है. तो दैट इज वाई इट गोज इनवर्सली, इट्स इनवर्स इन नेचर, ठीक है. आई विल बी गिविंग द स्लाइड, सो डोंट वरी. मैं एक एक चीज़ में नहीं जा रहा, बट जनरली एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. ओके सर, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन इफ आई टेल यू प्रैक्टिकली होता है, अरे ये 50 जन से या 5 जन से 15 जन से एक बार एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मंगवा दो. वी
make the list, we hand it over to the client, and then the client procures it and give it to us. Is that the correct procedure, sir? So what is the correct procedure? हमको भेजना है, we'll send it, and then client को मिलेगा, client अपने को दे देगा, then fine. Ab sir, the thing is that as far as this is concerned, why this external confirmation? This is one of the most critical aspects of evidencing audit evidence being obtained from a third party, whether it will be a bank or any other third party, sir. ठीक है, as sir lightly said कि बैंक confirmation अगर certificate होता तो that is dumped as directly an audit evidence. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि we need to directly communicate with those vendors. अब डायरेक्टली कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम्स आते तो दैट इज वाई कन्फर्मेशन के साथ साथ में कभी कभी क्लाइंट का एक लेटर लेना पड़ता है कन्फर्मिंग यस दिस आर द आर ऑडिटर्स एंड यू में, बिकॉज नहीं तो कोई भी चाहेगा तो लिख देगा कि मैं उसका ऑडिटर हूँ, फलाने का बैलेंस दे, तो किसी को पता नहीं रहेगा, तो ऑन एंड इफ दे शेयर द डेटा विथ देम तो हो ही सकता है. दैट इज वाई एन एडिशनल राइडर इज देयर वेन एवर यू आर सेंडिंग द कन्फर्मेशन ऑल्सो. क्लाइंट से एक लेटर ले लीजिए, जेनरिक लेटर की कन्फर्मिंग दैट यस दे आर ऑडिटर्स एंड फॉर द पर्पज ऑफ आवर ऑडिट you kindly send the confirmations directly to them. ठीक है, yes sir. Sir. Yes. And sending it to the ये सर प्रैक्टिकल पर्पज से बहुत बार ऐसा भी हो रहा है, बिकॉज कितनी बार जो है आपको वो क्लाइंट का वेंडर्स का ईमेल वगैरह नहीं मिल पाता, ये नहीं मिल पाता, तो प्रॉब्लम्स होती है. बट स्टैंडर्ड ये बोलता है कि इट्स दोस यू शुड हैव control over the external confirmation sent and received, and if not received, what are the procedures you have done? नहीं सर, क्लाइंट ने सेंड किया ना, it should be sent from your office. You should have that control. हाँ बट ठीक है, बट वो इंस्ट्रक्शन क्लाइंट उसको अलग से लिख सकता है, लेकिन आपसे पहले जाएगा, क्लाइंट सेकंड में कंफर्म कर दे कि हाँ ठीक है इनको कंफर्म कर दो चलेगा, लेकिन आपसे डायरेक्टली वेंडर को जाना पड़ेगा. दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट इज. अजीब लग रहा होगा बट सर दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट इज. हाँ अब वही बता रहा हूँ, रिस्पॉन्स आता ही नहीं है, इंस्टीट्यूट इज अवेयर ऑफ द फैक्ट, सबको पता है कि आता नहीं है, और बैंक से तो हरगिज नहीं आएगा. ठीक है, इसमें ये बोलता है एक बार नहीं आएगा, रीजनेबल थोड़ा सा रीजनेबिलिटी इज अप टू अस, लेकिन ये नहीं कि 2 दिन में नहीं आया तो अपने मान के चले. एक रिमाइंडर भेजिए, कंट्रोल रखिए कि रिमाइंडर भेजा. मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, स्टैंडर्ड बोल रहा है, जूता बाद में मार लीजिएगा मेरे को, ठीक है, बट स्टैंडर्ड जो बोल रहा है आई एम कमिंग टू दैट, देन विल कम टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. एंड देन यस सर, कर सकते हैं, एटलीस्ट आपके यहाँ से जा रहा है वो करना ही चाहिए अपने को, सो दैट कि बैंक से आपको कैसे दे देगा, बैंक से आपको कैसे दे देगा. बट वो मेल्स पे भी बैंक कंफर्म नहीं करता है, बैंक के आप फिजिकली जाके पकड़ के बैठना पड़ता है, तब जाके बहुत मुश्किल से देने की चेष्टा करता है. दैट इज एन इशू, दैट इज वी हैव इट्स एन इशू. स्टेटमेंट में है ना, स्टेटमेंट में है ना, यू कैन शो देम दिस गाइडलाइंस एंड ऑल दोस गाइडलाइंस आर देयर कि वो जो है फॉर्मेट्स वगैरह दे आर एक्सेप्टिंग, थोड़ा सा उनके पीछे लगना पड़ता है. ओके, कमिंग बैक टू दिस सर, सो द रिक्वायरमेंट इज वी नीड टू हैव अ कंट्रोल. रिमाइंडर्स जा रहे हैं, एक नहीं एटलीस्ट 2 रिमाइंडर्स जाने चाहिए, 2 नहीं तो एटलीस्ट 1 रिमाइंडर जाना चाहिए. नहीं आया तो अल्टरनेट प्रोसीजर्स करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा उसका भी रिक्वायरमेंट्स है कि आपको जॉट डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज आप अगर कंफर्मेशन भेज रहे हैं, आ गया रिस्पॉन्स, तो क्या रिस्पॉन्स आया, किससे रिस्पॉन्स आया, आपने क्या चेक किया, खाली टिक टिक करने से नहीं होगा. और अगर चेंजेस है, यस सर, जस्ट 2 मिनट्स, जस्ट 1 मिनट एंड देन आई टेक. यस, ओनली दिस एस्पेक्ट ओनली सर. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज द रिक्वायरमेंट. एंड वहाँ पे जो 23% यू आर सीइंग ना सर, 1920 एंड अगेन इज प्रैक्टिकली यही होता है. क्लाइंट को बोल दिया था, क्लाइंट कितनी बार फॉलो अप कर लेता है, क्लाइंट को आ गया, क्लाइंट के यहाँ से आके अपने डॉक्यूमेंट रख लिए, ये अपने बोलता है क्लाइंट के यहाँ प्लेस में है. सो दैट इज नॉट द केस. स्टैंडर्ड तो पूरा का पूरा ये बोलता है कि आपको इंडिपेंडेंटली जाना, आपके यहाँ से जाना चाहिए. अब सर इसमें मैन पावर इन्वॉल्वमेंट है, क्लाइंट तो देगा ही नहीं. दैट इज वाई दिस कॉस्ट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑन अस. ऑडिट की फीस तो बढ़ने से रही, बट स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट यही है. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो सेट कि रीजनेबली आप थोड़ा सा पहले भेजें, सो दैट कि वहाँ से रिस्पॉन्स आया या नहीं आया तो आप बोल सके कि सर मैंने भेजा था, रिस्पॉन्स नहीं आया, इसके कारण मैं अल्टरनेट प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहा हूँ. बट कितनी बार अपने बैलेंसेस में क्या लिख देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंसेस आर सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशंस, और वो लिख के निकल जाते हैं एंड डन एंड सो फोर्थ. इंस्टीट्यूट बोलता है कि दैट इज अ रॉन्ग एस्पेक्ट. यस, वाई आई एम सेइंग दैट. अगर मटेरियल है, ठीक है,
और ये नहीं आया तो इट कास्ट डायरेक्ट बियरिंग ऑन योर ऑडिट. आई विल कम टू योर क्वेश्चन सर, जस्ट अ मिनट, ठीक है. और अगर मटेरियल नहीं है तो लिखना ही क्यों है? अब अपने फंस जाते हैं. ये अपने लोग के लिए दुविधा है, बट स्टैंडर्ड से यही बोल रहा है. तो दैट इज वाई एम्फेसिस पे भी नहीं चलता है. अगर इस टाइप का इश्यूज हैं तो आप देखिएगा बहुत सारे एंटिटीज तो आजकल डायरेक्टली क्वालिफाई करती है कि अगर मटेरियल एस्पेक्ट्स है तब आप ये लिखो, अदरवाइज मटेरियल नहीं है तो मत लिखो. बट दिस इज अ थिन लाइन विच वी हैव टू टेक अ कॉल इन दिस रिगार्ड्स एंड वी हैव टू डॉक्यूमेंट इट. यस सर, योर क्वेश्चन प्लीज. To what extent that depends upon us, sir. मतलब in the sense that sir, yes sir, suppose उल्टा भी होता कितनी बार कि क्लाइंट को उल्टा आ गया कि भाई our auditors are seeking that and this is the balance as per us. If they are writing the balances and then seeking your balance, then you can depend on that. But confirmations में there aspect is positive aspect, negative confirmations are there. I am going by the positive only. Institute is asking that कि they say कि sometimes they write a balance in case of positive confirmations. This is the balance as per our books, kindly confirm as per your books. कितनी बार ऐसा जाता है या कितनी बार blank वाला जाता है कि for the purpose of our audit kindly confirm the balances as per your books in relation to our account. और वहाँ पे कितनी बार figures नहीं लिखे जाते हैं. ये इसलिए कितनी बार ऑडिटर करता है कि अगर 500 रुपये लिख दिया और हो सकता है उसका 5000 हो, अकाउंटेंट देखे नहीं और वही कंफर्म कर दे तो. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये किया जाता है तो रिस्पॉन्सेज और कम आते हैं, और अगर सामने सामने फिगर लिखा हुआ होता है तो वहाँ से भी कंफर्मेशन जल्दी आता है. बट मोर प्रूडेंट अप्रोच इज नॉट मेंशनिंग द बैलेंस एंड टेकिंग दैट कि वहाँ पे ब्लैंक जाए. अब सेकंड केस में उल्टा हुआ विच सर हैज आस्क्ड. सपोज द वेंडर इज डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग टू द क्लाइंट कि सेइंग दैट कंफर्म योर बैलेंस, but they have not communicated any balance in their account. So can I rely on that confirmation? Because client say the vendor has only asked for this कि वो confirmation client को भेज रहा. अब इस केस में आप you can note it down. आप एक बार confirmation तो भेजोगे फिर से confirmation का, लेकिन वहाँ से नहीं भी आता है तो you can have this record with you कि they have sent that and वहाँ पे balance mentioned था तो I am taking this on record कि they have sought for, because you will be also the vendors will also be your client will be confirming to their auditors. अगर ऐसा कुछ आता है तो क्लाइंट भी ऑडिटर्स को कंफर्म करता है वहाँ पे. सो यू कैन टेक दैट ऑन रिकॉर्ड, लेकिन नोटिंग करना पड़ेगा आपको. सर डिफरेंस है तो वाई रिकंसिलिएशन शुड बी देयर. इफ दैट इज मटेरियल इनफ तो अनकरेक्ट मटेरियल है कि नहीं है उसको लिखना पड़ेगा. मिस स्टेटमेंट तो आ ही जाएगा. अगर डिफरेंसेस है तो यू नीड टू रिकॉन्साइल, गेट इट रिकॉन्साइल्ड. हाँ सर, वो भी लिखा हुआ है कि अगर डिस्प्यूट है तो आपको नोट करना पड़ेगा कि डिस्प्यूट है, लेकिन जो है किस नेचर, फिर अल्टरनेट प्रोसीजर्स के बारे में लिखा हुआ है. वो भी इंस्टीट्यूट बोलता है, क्योंकि मैनेजमेंट कितनी बार बोलेगा सर इसको भेजना नहीं है, आपको इसको मत भेजिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी. वो भी है स्टैंडर्ड, वो भी बोलता है. तो अगर वैसा केस है तो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, आपको मेटेरियलिटी एस्पेक्ट देखना पड़ेगा. अगर बहुत ज़्यादा मेटेरियल है तो आप क्या प्रोसीजर से उसको अल्टरनेट कंफर्म कराएं. यहाँ पे अपने को बहुत बड़ा तकलीफ आ जाता है, चैलेंज आता है. ये एक अपने लिए लिमिटेशंस हो जाती है. यस सर, टू रीजनेबल एश्योरेंस के हिसाब से तो और भी चीज़ों का लेना चाहिए, बहुत सी चीज़ों का. हाँ सर, ऑब्वियस बात है. रिलेटेड पार्टीज़ का भी लेना चाहिए, ठीक है. सो रिलेटेड पार्टीज़ वर्क का भी लेना चाहिए, और एस्पेक्ट पे मैं नहीं जा रहा हूँ. एक फॉर्मेट है दैट आई विल बी शेयरिंग इट, डोंट वरी. फॉर्मेट है बट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, सो जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट. जैसे एक फॉर्मेट है, आई विल ट्राई टू शो इट टू यू. This can be used, or this is generally stated that just a second sir. Balance confirmation tracker छोटा सा है सर. Request sent to ID. This is what the institute is asking कि generally आपके पास confirmation कितने तारीख को किसको गया, किस email ID पे गया. अगर email पे भेज रहे हैं तो पार्टी का क्या नाम है, वो क्लाइंट के कैटेगरी में डेटर है, क्रेडिटर है, क्या बैलेंस है या कोड वगैरह है. उसके बाद में कंफर्मेशन का रिसीट आया या नहीं आया, कंफर्म्ड है, डिस्प्यूटेड है, कुछ आया या नहीं आया, या कुछ भी नहीं आया, ठीक है. और नहीं आया तो फिर आपने उसको फॉलोअप कब किया. एंड इस केस में आप क्लाइंट को भी एक फॉलोअप मेल डाल सकते हैं कि उसको बोलो कि भैया वो रिप्लाई करे. 2-3 बार नहीं किया तो फिर आप क्या अल्टरनेट प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे हैं. दिस इज द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ये स्टैंडर्ड्स. दैट इज वो 23% वाला देख रहे हैं ना सर, ये वाला है. अब आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अंडरस्टूड सर, लेकिन अपने अभी डील कर रहे हैं कॉमन एरर्स के अंदर में, तो दिस इज एटलीस्ट इसका 40% भी अपने करें, एटलीस्ट कन्फर्मेशन चालू तो करें, भेजना तो चालू करें एटलीस्ट.
अपना प्रॉब्लम है कि अपने सॉर्ट ही नहीं कर रहे हैं. Audit evidence, that is an audit evidence. We are saying that 143 में we have sought and obtained the information for the purpose of our audit, and it is what we call it. ठीक है, वी हैव सॉट एंड ऑब्टेन्ड. आप अगर सॉट ही नहीं कर रहे हैं तो हाउ कैन यू से एक्सटर्नल कंफर्मेशन आया ही नहीं सर, आता ही नहीं है. फाइन विद दैट, एटलीस्ट आपको सीख तो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बोल कैसे सकते हैं. अल्टरनेट प्रोसीजर्स तो बात की बात है सर. और अगर नहीं सीख कर रहे हैं, क्लाइंट का डिस्प्यूट वगैरह है, तो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि डिस्प्यूट है, मैनेजमेंट ने मना किया है, ये भी लिखा हुआ है उसके अंदर में, किस लिए मना किया है और किस कारण से. ठीक है सर. यस, not only that, but that gives an indication कि ये भी disputed है. I cannot say only that figure will come because management बोल रहा है तो ठीक है, but that is what they are saying. Sir, yeah, it can happen. So the reconciliation should be there. Why so sir? I will check the reconciliations के हिसाब से मैच करते हैं. मान लीजिए सिंपल एग्जांपल, इफ आई गॉट यू करेक्टली, बैंक BRS, हाँ हाँ, हाँ, then you have to see and you have to confirm with the client कि क्या मैटर क्या है, मसला क्या है. You cannot show, इट इज द क्लाइंट्स विल शो. क्लाइंट का अगर चाह ही नहीं रहा तो आप कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. यस, इफ दे आर सेइंग कि सर ये मिसमैचेस नहीं है, ये नहीं है, if they are not agreeing to that, then obviously you have to take a call कि that कि ये on what basis are you relying that. हो सकता है उनके अकाउंटिंग में भी गलती हो, तो क्लाइंट से पहले आपको वार्तालाप करना पड़ेगा, उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है, अब मटेरियल है कि नहीं है, ठीक है, क्या जगह इंपैक्ट हो सकता है, और उसके हिसाब से फिर यू विल हैव टू टेक अ कॉल कि क्लाइंट करेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यू माइट हैव टू क्वालिफाई ऑल्सो. दैट विल डिपेंड ऑन द केस टू केस सर. और इसके बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में भी इसका जो है स्टैंडर्ड्स थोड़ा सा रेफरेंसेस देता है. यस सर. ऑल्टरनेट मीन्स, अब मान लीजिए कि ये जो बहुत जगह पे यू आर सेइंग GST वगैरह में बैलेंसेस वगैरह देखते हैं, सब्सिक्वेंट पेमेंट्स यू आर सेइंग कि रेगुलर अफेयर पे मान लीजिए क्रॉस ऑफ हो जा रहा है ट्रांजेक्शन्स वगैरह. कितनी बार कन्फर्मेशंस वगैरह के में आप देखते हैं कि बैलेंसेस वगैरह में यस योर दिस बैलेंसेस आर देयर कि आपका ये दिस इज द ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज द करेंट बैलेंसेस. कभी कभी स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, क्लाइंट्स के नॉर्मल स्टेटमेंट्स आते हैं वेंडर्स के साथ में, नॉर्मल कम्युनिकेशन वगैरह में, एंड हेंसफोर्थ ये बहुत सारे इस टाइप के हैं. दैट विल डिपेंड ऑन केस टू केस सर. आई नो दिस इज नॉट अ प्रॉपर आंसर टू दैट, बट दैट विल डिपेंड फ्रॉम केस टू केस इन दिस रिगार्ड, बिकॉज क्लाइंट का उसके साथ ट्रांजेक्शन रेगुलर अफेयर है कि नहीं, रेगुलर चल रहा है कि नहीं चल रहा है. नहीं चल रहा है तो देन इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न. अगर रेगुलर चल रहा है तो आप उसमें देखें कितनी बार रिबेट्स वगैरह भी मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, या मान लीजिए कितनी बार क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स वगैरह भी हो जाता है सब्सिक्वेंटली 2-2 3-3 महीना बाद जाके भी होता है सर ये चीज़. तो दैट इज़ वाई आपको आइडेंटिफाई करके कुछ एस्पेक्ट 100% तो पॉसिबल नहीं है. दैट इज वाई द एस्पेक्ट ऑफ मेटेरियलिटी, दैट इज वाई द एस्पेक्ट ऑफ सेंडिंग सर्टन कन्फर्मेशंस एंड देन चेकिंग ऑल दिस. 100% अपने रिलाई नहीं कर सकते. दैट इज वाई दिस सेफगार्ड्स अस ओनली सर, दिस सेफगार्ड्स अस ओनली. आई एम नॉट टेलिंग सर, आई एम नॉट टेलिंग, स्टैंडर्ड बोलता है सर, स्टैंडर्ड के हिसाब से. बिकॉज अगर आप बोल रहे हैं कि बैलेंस सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशंस है, मटेरियल है, FRRB एंड QRB हैव ऑब्जर्व्ड सर, बैलेंस इज सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन अगर आप बोल रहे हैं एंड दैट इज कास्टिंग अ डाउट ऑन द फाइनेंशियल्स इटसेल्फ, तो मटेरियल है तभी दीजिए. अगर मैनेजमेंट खुद बोल रहा है और मटेरियल है तभी है, अदरवाइज तो देन यू शुड हैव डन अल्टरनेट प्रोसीजर्स, और फिर भी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशंस है सर. Sir, let him just complete. Sir, yes sir. Yes. So what are the alternate? वही वाला तो बात है ना, बैंक से भी तो कंफर्मेशन है, तो अल्टरनेट प्रोसीजर्स आपने क्या किया टू अराइव एट, उसमें डिफरेंसेस वगैरह आ रहे हैं, मटेरियल है और नहीं है, तो कुछ ना कुछ तरीके से हाउ आर यू गेटिंग सेटिस्फाइड सर. वही वाला एक ट्रिकी एस्पेक्ट है अपने ऊपर सर. सर सर सर
सर you can send, there is no harm in not sending them. आप लिख ही सकते हैं, but it is up to the auditor to determine कि figure लिखना है या नहीं लिखना है. It is up to the manner of communicating, manner of drafting the confirmation entirely lies with the auditor. That is also stated over in the standard, sir. कि आपको balance लिखना है नहीं लिखना है. I'll just open this, just a minute, sir. Sir 5 मिनट मैं एक्स्ट्रा लूँगा इसके लिए, if you are okay with that, sir. ठीक है. Sorry, 550 I open, not 505. Sorry, my mistake, sir. 505. Just a second. 505. Sir, I couldn't get you, sir. No, sir, you are not audible. That is why I'm just. Can you just repeat yourself once more? Yes. So you can if they are themselves sending that, अब प्रॉब्लम है कि क्लाइंट को मिल रहा है, दिस इज गेटिंग क्लाइंट को. आप जब लिखने जाओगे आपके पास आया नहीं, करेक्ट. व्हेन एज एन ऑडिटर यू आर सेंडिंग, दे आर नॉट सेइंग, दे आर सेइंग कि वी हैव ऑलरेडी कंफर्म टू द क्लाइंट. इन दिस रिगार्ड आप एक और रिमाइंडर भेजोगे, आएगा नहीं. उसके बाद अल्टरनेट प्रोसीजर में ये तो बोल सकते हो कि एटलीस्ट देन आई रिलाइड ऑन द कंफर्मेशन सेंड बाय दैट पार्टी टू द क्लाइंट कि दिस इज माई बैलेंस. सर वो लिख के रख लेंगे, आपका काम हो गया. When you are sending your that means the vendor is sending. Okay. So that as an auditor, sir, आप क्लाइंट क्या कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं. एज एन ऑडिटर दिस इज एन इंडिपेंडेंट थिंग. क्लाइंट बोल रहा है 5 लाख रुपया है, क्लाइंट बोल रहा है 50,000 रुपया, कुछ भी बोले, मेरे को मतलब नहीं. एज एन ऑडिटर माई प्रोसीजर इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन इंडिपेंडेंटली आई हैव टू सीक. क्लाइंट उसको भेज रहा है नहीं भेज रहा है, दैट डजंट हैव एनी रेलेवेंस टू दैट. एंड ओवर हियर ओनली वी आर हैविंग प्रॉब्लम, सर. यही मैंने इसीलिए बता रहा हूँ, सर. द रिक्वायरमेंट इज दैट. यस, सी determining the information to be confirmed, the auditor shall maintain control over the request including determining the information, designing the confirmation request including determining that requests are properly addressed and contain written information for responses to be sent directly to the auditor, and sending the request including follow up request when applicable to the confirming party. ये mandatory है, sir. अपना responsibility. If the management refuses to allow the auditor to send a confirmation request, inquire as to the management reasons for refusal of the same and seek audit evidence as to validity and reasonableness. Evaluate the implication of the management refusal on the auditor's assessment of the risk and the risk of misstatement of fraud in this regard. Perform alternate procedures. उसके बारे में नीचे में कुछ एस्पेक्ट दिया है. And if the auditor concludes that it is unreasonable, he may in that regard he shall determine the implications of the audit opinion itself. ये भी लिख रखा है इसके अंदर में. ठीक है सर. नॉन रिस्पॉन्सिव वगैरह आए तो ऑडिटर शैल परफॉर्म अल्टरनेट प्रोसीजर्स. उसके बाद में एक सेकंड और बता देता हूँ. एक्सेप्शंस आर नथिंग इन दिस स्टेटमेंट. डिफरेंसेस अगर आएंगे तो यहाँ पे उन लोग डिफाइन कर रहे हैं एज एक्सेप्शंस. एंड जस्ट अ मिनट सर. When the auditor concludes that a response is unreliable, the auditor may need to revise the assessment of risk of material risk statement. ऐसा भी कभी कभी होता है, कंफर्मेशन का आएगा लेकिन आपको लग रहा है गलत है यार. ऐसा भी होता है, कितनी बार हुआ है सर. केसेस आर देयर वेर इन डायरेक्टली कंफर्मेशन आपने भेजा भी और वहाँ पे जो है देयर आर फॉर्जरी और आपको समझ में आ रहा है कि वहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो उस केसेस में भी इट इज़ नॉट दैट कि आ गया तो इट इज़ मैंडेटरी, यू हैव टू रिलाई ऑन दैट. देयर इज ऑल्सो अ केस. इट इज़ जस्ट एन एविडेंस. आपको लगता है कि रीजनेबल है, सही है, तो दैट फाइन. इफ़ यू आर हैविंग डाउट्स ऑन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ऑल्सो कि वो सही नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो द केस. ऐसा नहीं कि आपको मैंडेटरी मानना ही है. स्टैंडर्ड ये भी बोलता है. इट इज़ नथिंग न्यू सर, पहले से है ये चीज़. ठीक है सर. आई एम नॉट गेटिंग मच इन टू दिस. ये चीज़ भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स को स्टैंडर्ड्स के अंदर में कवर किया गया, बहुत सारा स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को दैट हैज कवर्ड. रिलेटेड पार्टी वाले एस्पेक्ट में सर वन ऑफ द फोरमोस्ट issues are related parties as identified by the management. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दिया जाता है. सर सही है या गलत है? I again repeat, in the financial statement is prepared by the management.
ठीक है, एंड note suppose note 24, note 25 is the related party disclosures therein. Related party in terms of AS 18 or whatever case be, related parties, and वहाँ पे एक सब नोट दिया जाता है नीचे में, related parties as identified by the management and relied upon by the auditors, and उसके बाद में सारा का सारा disclosures है कि ये सारे KMP हैं, these are the transactions, and so henceforth, so on and so forth. So first of all tell me, वो जो superscribe कर रहा है related parties as identified by the management and relied by the auditors, ये सही है या गलत है? सर कुछ लोग सही बोल रहे हैं, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं, तो जो गलत बोल रहे हैं वाई गलत? इट्स ओपन टू द हाउस सर, प्लीज. टू थिंग्स आर देयर. सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाता है, नॉट ऑडिटर्स. ये रेलेवेंस होल्ड गुड नहीं करता, आप कुछ जगह बोलेंगे. तो सेकंड चीज है कि ऑडिटर्स कैन नॉट rely merely on the representation by the management. ऐसे 550 भी बोलता है कि you should conduct procedure, और आपको at least you should have records कि जो मैनेजमेंट ने बोला आपने वेरीफाई किया या आपने खोजने की चेष्टा की कि ये रिलेटेड पार्टी सही है कि नहीं है. 100% आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ प्रोसीजर्स आपने अप्लाई किए कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन है. आप एटलीस्ट MVP 1 वगैरह देखेंगे, ये सब देखेंगे, DIR 8 देखेंगे, या पुराने डिस्क्लोजर्स वगैरह चेक करेंगे. इन दोज रिगार्ड्स आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा रिलेटेड पार्टीज किस तरीके से. सिर्फ और सिर्फ मेयरली रिलाइंग इज नॉट कंडक्टिंग एन ऑडिट प्रोसीजर. These are cases जहाँ पे NEFRA, QRB, FRRB have held the auditors guilty for not exercising their proper audit procedures. We have verified the, तो इसके alternates वगैरह हैं बहुत जगह पे दिए गए, ठीक है ना. तो that is what it is said that, ठीक है सर. Seems very odd but that is the requirement of 550, not just merely relying. कुछ प्रोसीजर्स एटलीस्ट दिखाना पड़ेगा कि ये सब हमने किया था, या चेक भी किया था तो किस तरफ से चेक किया था, या एटलीस्ट इंक्वायर भी किया था मैनेजमेंट से और कोई है कि नहीं. तो सिर्फ मैनेजमेंट येस नो नहीं बोल रहा है, कुछ तरीके से प्रोसीजर्स या कुछ अपने को बताने पड़ेंगे. एंड वी कैन नॉट एवरी टाइम से सेम एज लास्ट ईयर तो था, सेम एज करंट ईयर है, ऐसा नहीं. उस साल में भी आपको या तो कुछ कोरिलेट करना पड़ेगा, या लास्ट ईयर वाली चीज़ को आप होल्ड गुड करके क्यों चल रहे हैं. बिकॉज मैनेजमेंट जो दिखाना है वही दिखाएगा, नहीं दिखाना है तो अपना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नहीं दिखाया अपने को खोजना पड़ेगा. इन्वेस्टिगेशन नहीं है बट एटलीस्ट रीजनेबिलिटी, आपने प्रोसीजर अप्लाई किया कि नहीं किया, दैट इज व्हाट द थिंग इज. आपने प्रोसीजर ही अप्लाई नहीं किया और डायरेक्टली खुद बोल दिया कि हमने तो रिलाई कर गया, तो वहीं पे सर वायलेशन हो गया ना, और फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे वायलेशन करके निकल गए. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? डिलीवरेबल इटसेल्फ पे अपने वायलेशन करके निकल गए. वर्किंग पेपर बना के नहीं बनाया, ऑल्दो इट्स ऑन रिकॉर्ड बट आई एम स्टिल सेइंग वर्किंग पेपर बना के बिना हो तो अलग बात है, बट ऑडिटर खुद अपना खुद का वायलेशन करके निकल गया कि यस आई हैव नॉट अप्लाइड एनी प्रोसीजर्स. सो दैट इज द केस सर. छोटी छोटी मगर गंभीर बातें हैं सर. ओके, कमिंग टू दिस ऑडिट रिपोर्ट वाला पार्ट सर, सर्टिफिकेट बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं है बट स्टिल 143(3) में ड्रॉइंग योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट वी हैव सॉट एंड ऑब्टेन्ड. आई थिंक आई एम ऑडिबल एट द बैक आल्सो सर. We have sought and obtained all the information and expression which to the best of our knowledge and belief are necessary for the purpose of our audit. ठीक है सर. अब सपोज दिस इज अ क्वालिफाइड रिपोर्ट, सपोज ये अनक्वालिफाइड रिपोर्ट था, क्लीन रिपोर्ट था तो चलेगा. अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट होता तो इस पैराग्राफ में कुछ चेंज करना चाहिए क्या? What I am saying, am I making sense? Yes or no? स्टैंडर्ड यही है सर, यहीं पे अपने को ध्यान रखना है. कॉलर माइक तो देते हो कि कॉलर माइक से ठीक है. आई विल नॉट मूव मच बट स्टिल. सो इन दिस रिगार्ड प्लीज नोट वी हैव सॉट एंड ऑब्टेन्ड है. सपोज देयर इज एन मॉडिफाइड ओपिनियन, इन दैट केस वी हैव सॉट एंड ऑब्टेन्ड except for the matters as specified under basis for qualified opinion or except for the matter as stated under basis for adverse opinion. वहाँ पे आपको स्पेसिफिक लिखना है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये आपका स्टैंडर्ड्स बोलता है. एंड ये गलतियाँ हो जाती हैं. दैट इज वाई वेन एवर यू आर सीइंग एनी क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, तो एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स एज स्पेसिफाइड अंडर इतना, बिकॉज यू आर ओनली क्वालिफाइंग बिकॉज यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. तभी तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि ट्रू एंड फेयर नहीं है. अगर आपको सारा एविडेंसेस मिल रहा है, ट्रू एंड फेयर है इन दैट रिगार्ड, मटेरियल स्टेटमेंट्स वगैरह, तभी तो उस हिसाब से आप चल रहे हैं. तो ये इस चीज के बारे में है, परवेजिव है कि नहीं, ऑल दोस. आई एम नॉट गेटिंग इनटू वेरी डिटेल्ड एस्पेक्ट बट ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, इन आवर ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी सो फार इट्स अफेयर फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स. ठीक है सर. अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर ब्रांच ऑडिट है तो ये वाला एस्पेक्ट कितने बार लोग भूल जाते हैं. प्रोवाइडेड द मेन ऑडिटर इज नॉट द ब्रांच ऑडिटर. अगर वो सेम है तो ये नहीं लिखेगा,
बट इफ दे आर डिफरेंट देन उसको लिखना पड़ता है. लाइकवाइज अदर मैटर में भी ही हैज टू मेक अ रेफरेंस देयर टू. ठीक है ना, कि अदर मैटर पैराग्राफ में भी ऑल्सो स्टेट दैट so and so amount of branches are there which have not been audited by us but we have relied upon the report of the other auditors like bank. ठीक है. Furthermore IFC reports वगैरह भी अगर होगा उस केसेस में तो ओपिनियन पैराग्राफ में we have verified some and have relied upon the report of the auditors in branch auditors in this regard. ये ध्यान रखना है सर, इंटरनल की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रांच ऑडिटर्स की बात कर रहे हैं. एक छोटा सा एग्जांपल सर, और प्लीज हेल्प मी आउट. Appointment of the branch auditors is done, can it be done by the board of directors or it should be done in the AGM sir? I threw this question to you sir. Appointment of the branch auditors, stat audit की बात नहीं कर रहा हूँ, branch है, किसी कंपनी का branch है, branch auditor can be different from the stat auditor sir. इसकी appointment AGM में होनी चाहिए या फिर BOD अगर करेगा तो will be sufficient sir? सर AGM में होना चाहिए तो कहाँ लिखा है? अब मेरा नेक्स्ट, अब जो भी क्वेश्चन होगा मेरा है कहाँ लिखा है? नो सर, इट्स नॉट ओनली रिलायंस. सेक्शन बोलता है कंपनीज एक्ट का जो है ना, सेक्शन से 139 और 143 वहां बोलता है द अपॉइंटमेंट ऑफ द ब्रांच ऑडिटर शुड बी इन द मैनर एज डन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स. वहां बोलता है. और इसका एक नेफ्रा का केस बता देता हूँ. DHFL के केस में ब्रांच ऑडिटर्स वर नॉट अपॉइंटेड थ्रू द AGM. वहां पे उनका अपॉइंटमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया था. मेरे ख्याल से 20-25 ब्रांच ऑडिटर्स थे, उनके रिपोर्ट पे ही क्वेश्चन आ गया कि आपका अपॉइंटमेंट ही तरीके से नहीं हुआ था. हाउ कुड यू एक्सेप्ट द असाइनमेंट एंड कंडक्ट द ऑडिट इटसेल्फ? रिपोर्ट्स में तो गलतियां अलग छोड़ दीजिए सर. दैट इज व्हाई व्हेनेवर इवन यू आर अपॉइंटेड एज अ ब्रांच ऑडिटर्स और इवन इफ यू आर द सेंट्रल ऑडिटर एंड यू आर सीइंग ब्रांच ऑडिटर्स है तो मेक श्योर अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ ब्रांच ऑडिटर्स आर देयर इन द AGM. अब लोग क्वेश्चन पूछेंगे सर ADT 1 में रिक्वायर्ड है क्या? वो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन रेजोल्यूशन टू बी पास इन द AGM इज द रिक्वायरमेंट सर. मैं नहीं बोल रहा हूं, कंपनीज एक्ट बोल रहा है, चेक कर लीजिएगा सर. ठीक है सर, यहां पे गलती हुआ एंड यू से दैट अपॉइंटमेंट ठीक नहीं था, वी हैव रिलायड अपॉन द ब्रांच ऑडिटर्स का रिपोर्ट, उसका अपॉइंटमेंट ही सही नहीं था, तो बाद में क्वेश्चन आ सकता है सर. मटेरियल ब्रांच निकल गया, आपके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा. ऐसे 600 का इश्यूज आते हैं सर ये, एंड देयर आर डिसिप्लिनरी केसेस इन दिस रिगार्ड. यस सर. इंटरनल ऑडिटर तो सेक्शन 138 का तो वो AGM में नहीं होता, वो बोर्ड कर सकता है सर. टू माई नॉलेज दैट इज द एक्ट एज ऑफ नाउ. आई डोंट नो अबाउट व्हाट द कंपनीज बिल इज कमिंग, बट अभी तक के लिए तो बोर्ड भी कर सकता है. एंड कैन द इंटरनल ऑडिटर बी अ पर्सन फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ विद इन द कंपनी? कुछ लोग नो बोल रहे हैं, कुछ यस बोल रहे हैं सर. यस, 138 अलाउ, इट नीड नॉट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन. इंटरनल ऑडिटर जो है, नॉट द ब्रांच ऑडिटर, internal auditor can be an internal person of the company itself. And in those cases if we are saying we are relying upon the report of the internal auditors, in that case independence कहाँ गया सर? तब आपको external और procedures करने पड़ेंगे, और whether he is competent enough. और इसी के लिए कारों में सिर्फ और सिर्फ लिख देना कि the internal audit is commensurate with the nature and size of the business नहीं चलेगा. ऐसे 600 का लंबा चौड़ा compliance करना पड़ता है, प्लस कम्युनिकेशन करना पड़ता है. यहीं पे अपने ऑडिटर्स फेल कर जाते हैं, और यही ऐसे 600 का और भी एस्पेक्ट्स है. लेट अस नॉट गेट इनटू दैट, बट दैट इज द केस सर. रिपोर्ट्स ब्रांच ठीक है. अब यहाँ पे देखिए सर, द बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट. इन केस देयर इज एनी इंड एस देन दिस स्टेटमेंट शुड बी द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आना चाहिए, लेकिन इंड एस नहीं है तो ये नहीं आना चाहिए. कुछ बैलेंस शीट्स में कॉपी पेस्ट चल रहा है. Yeah, there are cases which has been identified the components of financial statements are balance sheet and statement of profit and loss only. ठीक है, बट नीचे में यहाँ पे ऑडिटर लिख देता है एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ही नहीं. सो दैट इज वाई ये जो कंपोनेंट वॉट एवर इज बीइंग स्टेटेड ओवर हियर शुड बी मैप्ड विथ, कंपल्सरी मैप्ड विथ ओपिनियन पैराग्राफ में जो फर्स्ट लिखते हैं ना, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेस ऑफ द बैलेंस शीट, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेशंस देयर टू. ठीक है ना सर, स्टेप से कुछ लिखा जाता है तो वहां से आपको मैप करना पड़ेगा. लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसीज का रेफरेंस यहाँ दरकार नहीं है. वो फिर लोग जो है ना, कुछ लोग वो भी चालू कर देते हैं. एंड अकाउंटिंग पॉलिसी सर उसकी नहीं है, बिकॉज वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, सेकंड वाले पार्ट में आता है वो. अकाउंटिंग पॉलिसीज एमिनेटिंग फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. एंड दैट इज वाई यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर इंड एस होता है तो इंड एस लिखती है कंपनी, इंड एस नहीं है तो नॉर्मल इस हिसाब से लिखती है. ठीक है, एंड कंपनीज रूल 7 भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट.
IFC report applicable है या नहीं है, that will depend, but in case even if that is not applicable, we should give reference why that is not applicable there too. कितने बार होता है कि ऊपर में अपने लोग लिखना ही भूल जाता है कि applicable नहीं है, तो we are not mentioning that. That is a violation, sir, because 143 is the auditor shall report, and that is not coming from standards and auditing. This 143 reporting requirement is coming from the act itself, sir. Act स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के भी ऊपर आ जाता है कितनी जगह पे, तो एक्ट खुद बोलता है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है. लाइकवाइज 197(16) 143(3) का बात नहीं कर रहा हूं, सेक्शन 197(16) बोलता है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. अब आप बोलेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है, अंडरस्टूड सर, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को अगर एप्लीकेबल नहीं भी है तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197(16) ऑफ द एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. ये नहीं लिखा जाता है, FRRB के ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑडिटर इज फाउंड टू बी negligent, you have not exercised proper diligence in preparation of the audit report. Advisories issue हो जाते हैं, मेटेरियल तो नहीं माना जाएगा लेकिन एडवाइजरीज इशू हो जाते हैं इस सब चीज़ के ऊपर में, तो ये थोड़े से ध्यान रखने पड़ते हैं, बिकॉज दिस इज अ मैंडेट रिक्वायरमेंट. 197(16) मैंडेटरी बोलता है डिस्क्लोजर कर रहे हैं. सर सर मैंने अभी क्या बोला? नहीं, no. There are various companies, even bigger listed companies also, they are having internal audit division wherein even the chief internal auditor, or what they call is a new designation which they have coined, may be a CFO, may not be a CFO, may be a normal जो है accountant level person भी हो सकता है. He need not be, he can be a graduate, he cannot be, but as an auditor you need to verify whether he is competent enough to carry out the exercise, and that diligence has to be done by you. और वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड बोलता है कि वेदर उसके ऊपर में रिलाई कर रहे हैं तो उसकी नॉलेज कितनी है. अदरवाइज इफ यू आर रिलाइंग देन फाइन, कैसे रिलाई कर रहे हैं वो आप एस्टैब्लिश कीजिए, और अगर आप रिलाई नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपने हिसाब से पूरा का पूरा चाहिए ले, फिर आप मत बोल सकते हैं. दैट इज वाई कारो के अंदर में फिर आपको लिखना पड़ेगा वी हैव कंसिडर्ड रिपोर्ट, नहीं वी हैव नॉट कंसिडर्ड, और ऐसे 600 में येस वी हैव कंसिडर्ड वाला चेकलिस्ट में टिक 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 मार के लोग निकल जाते हैं, क्योंकि येस सर ऑडिट रिपोर्ट आई, रख लिए, काम हुआ, खत्म हुआ. It is not that standard. That is why says कि आपको उसकी competency भी check करनी, but provided if that person is a independent chartered accountant firm, in that regard also institute says, in that regard you have to say that ठीक है, since it's a CA firm, institute says कि फिर आपको उसकी credibility check करने की दरकार नहीं है, लेकिन उसका स्कोप क्या है, किस नेचर से काम कर रहा है, उसके साथ आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है सर ये बात, वी आर नॉट सेइंग दैट. ठीक है सर, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है. Can rely, but he cannot मतलब blindly he cannot rely. He has to conduct certain procedures to arrive at why he is relying and to what extent he is relying. Conducting the scope, 100% scope है नहीं है, that is all a lot of cases are there sir. 600 के ऊपर जाएंगे तो अभी 3 घंटा लगा सकते हैं सर अपने ऊपर. ठीक है, हाँ सर, यही है, कागज में एटलीस्ट तो ठीक करना पड़ेगा सर. यस सर, करेक्टली डन सर. Okay, I'm coming to this aspect sir, because I think I'm having half an hour, and if sir permits 5 minutes extra जो sir को मैं I'm borrowing from sir. Okay, just a minute sir. Audit report पे थोड़ा सा आते हैं. Parawise referencing, just a minute sir. Not this one. सर टेम्पलेट तो मिल जाएगा, बट अपने को समझना कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कवर. ऑडिटर ओपिनियन सर, ठीक है, ऑडिटर्स ओपिनियन. तो वी हैव ऑडिटेड द स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यहाँ पे अब मैं जो बोल रहा था, हेलो, यस, ओवर हियर व्हाट आई वाज स्पेसिफाइंग दैट द कंपोनेंट्स आर देयर, समटाइम्स इट इज सीन इन द कंपोनेंट इटसेल्फ. यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इज मेंशन्ड, बट ओपिनियन में कितनी बार कंपोनेंट्स में कैश फ्लो छूट जाता है. एंड प्लीज इंश्योर दैट ओनली एंड ओनली इफ कैश फ्लोज आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एप्लीकेबल है अलग बात है, नहीं भी एप्लीकेबल है, द मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग द सेम एंड दिस इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम, देन यू विल मेंशन द सेम, बिकॉज अगर आप साइन कर रहे हो तो इन दिस रिगार्ड. तो अगर ऊपर भी है तो यहाँ नीचे भी आएगा, नहीं है तो दोनों जगह नहीं आएगा. लाइकवाइज 143(3) के रिक्वायरमेंट में द स्टेटमेंट, द बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट, वहाँ तीनों जगह आएगा तो तीनों जगह आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. ये गलतियाँ हो जाती हैं, एंड दैट इज
considered to be gross negligence. इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि सर छूट गया, या in fact profit oblique loss. Sir, there are cases where it has been seen that the auditors are mentioning profit oblique loss and they are not striking it out. Best example is bank audit. तो सर क्लैरिकल एरर मान लूँ इसको, क्यों छूट गया? फॉर्मेट में तो यही था प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस. व्हाट विल यू कॉल इट सर? मैं नहीं बोल रहा, FRR भी बोल रहा है, इट वॉज टर्म्ड एज ग्रॉस नेग्लिजेंस बिकॉज ओपिनियन इटसेल्फ इज देयर. व्हाट इज द ओपिनियन? प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस लिख के निकल गया एंड विल से क्लैरिकल है, नहीं चलेगा, नहीं चलबे ना. ओके, एंड यहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है सर, इंस्टीट्यूट के अलग अलग. देर आर FRRB के वेरियस डॉक्यूमेंट्स आर देयर ऑन द कॉमन नॉन कंप्लायंसेस ऑब्जर्व्ड इन रिगार्ड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन डेज अदर देन इन डेज. 5 से 7 वॉल्यूम्स है. QRB के अलग वॉल्यूम्स वगैरह, उन सब का कुछ कुछ कंपाइलेशन से मैं आपको बता रहा हूँ. एंड इन दिस केस प्लीज अंडरस्टैंड दिस कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया. इसमें आई डिफर अ बिट विद द illustration given by the ICAI. What is the ICAI ने जो illustrative audit report दी है in SA 700, over there they have given this format stating that the financial statement give the information as required in terms of the act and it gives a true and fair view in conformity with the accounting principle generally accepted in India of the state of affairs of the balance sheet and its profit oblique loss for the year and its cash flows for the year and done ended. इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है. हाँ सर कुछ याद है, बिना देखे बता रहा हूँ, बट द थिंग इज दैट क्योंकि ये सबसे बड़ा मेजर अपना ओपिनियन है, दिस इज द मेन ओपिनियन. ठीक है, अब इसमें एक गलती क्या हो रही है, सम एरर इज हैपनिंग इन दिस रिगार्ड इज वी आर नॉट स्टेटिंग द एप्लीकेबल फाइनेंशियल. मैं बोल रहा था ना आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पैराग्राफ 25B. आई एम कमिंग टू दैट एस्पेक्ट ओनली. दिस वन सर, the financial statement gives the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principle generally accepted in India. मेरे को सिर्फ और सिर्फ इशू है with this paragraph and मेरे को नहीं है. Why the issue is there? Because the paragraph 25B says आप सिर्फ ऐसा नहीं लिख सकते. आपको क्या लिखना है? अगर सेक्शन 133 वाला है तो वो लिखेंगे, इंडिया ऐसा तो वो स्पेसिफिक आपको एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लिखना ही पड़ेगा. अदरवाइज आपका ओपिनियन किस चीज पे? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो फिर इंस्टीट्यूट वाला भी चल सकता है. ठीक है, आपने स्पेसिफाई ही नहीं किया कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. एंड दैट इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग सर QRB की फाइंडिंग्स है, नेफ्रा की फाइंडिंग्स है कि ये जो है ये ग्रॉस नेग्लिजेंस माना जा रहा है. ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आप तो इलस्ट्रेटिव ऑडिट रिपोर्ट्स पे ही बोल रहे हैं, बट सर दिस आर इलस्ट्रेटिव ओनली, स्टैंडर्ड्स विल ऑलवेज प्रीवेल ओवर देयर. क्या होना चाहिए सर? गुड क्वेश्चन. क्या होना चाहिए? एटा हवा उचित सर. इन केस ऑफ नॉर्मल कंपनीज ग्रीन में जो है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस स्ट्राइक आउट होना चाहिए, ऑब्वियस बात है. अब उसके बाद में एंड द अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्ट चलेगा, लेकिन एटलीस्ट ये होना ही चाहिए 133 वाला. अब किस लिए होना चाहिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ सर, एविडेंस लग भी. तो आई कैन गो SA 700 का, मैं बेयर वाले पे जाऊं या PPT में जाऊं सर? एज यू से बेयर से दिखाऊं या PPT से दिखाऊं? विच विल बी मोर एविडेंशियल वैल्यू सर? चलिए सर, थैंक यू सो मच सर. व्हेन एक्सप्रेसिंग एन अनमॉडिफाइड, एक बार अनमॉडिफाइड की बात करें. चलिए मॉडिफाइड में भी बाद में बोलेगा, लेकिन सिंस वो ट्रू एंड फेयर नहीं देगा तो उस केस में फिर सब्जेक्ट टू दैट हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे इश्यूज आते हैं. बट ठीक है, एक बार अनमॉडिफाइड की बात करते हैं. व्हेन एक्सप्रेसिंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट prepared in accordance with the fair presentation framework, the auditor's opinion shall, unless otherwise required by law or regulation, use one of the following phases which are regarded as being equivalent. First में है the accompanying financial statement present fairly in all material respect. अपने ये लिखते हैं क्या? ये वाला लिखते नहीं, अपने लिखते in our opinion the accompanying financial statement give a true and fair view. अब देखिएगा in accordance with, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? 2 ब्रैकेट से है सर. This is one bracket and this is another bracket, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के इन अकॉर्डेंस विथ. ठीक है, अब ये दो चीज़ का जो है इसका रेफरेंसिंग ये ब्रैकेट्स का दिया है, A19 to A26 पैराग्राफ में दिया है. इस ब्रैकेट का मीनिंग इटसेल्फ दिया है. आई एम कमिंग टू दैट. दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग योर लीवे इन पैराग्राफ नंबर A22. सर इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, स्टैंडर्ड्स इसी हिसाब से आते हैं. आई नो यू ऑल आर एक्सपीरियंस इन इनफ, बट स्टिल we need to understand that that is the application of the other aspects there too. and यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ है
इन केस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग टू द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क A22 में बोलता है, A19 से 26 के बीच में बोला था, आई एम टेकिंग A22 ओवर हियर. द ऑडिटर्स ओपिनियन शैल स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मेटेरियल रिस्पेक्ट और गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. वो दोनों वाला एस्पेक्ट क्या था, आइदर और था उसमें 25A और B के एस्पेक्ट में, ऑफ द मैटर्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिजाइन टू प्रेजेंट. फॉर एग्जांपल, अब यहाँ एग्जांपल से देखिएगा, इन केस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनीज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज इंड AS वाला है, ट्रू एंड फेयर व्यू इटलिक्स देखिएगा, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द कंपनीज एज एट द फाइनेंशियल ईयर एंडेड इतना एंड इज कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड इतना. कॉन्सिक्वेंटली, अब देखिए पैराग्राफ वर्ड वाला, कॉन्सिक्वेंटली द ब्रैकेट इन पैराग्राफ 25 and elsewhere in this essay is intended to be replaced by the words in italics in preceding sentence with the applicable financial reporting framework in Indian accounting standards and in other applicable. उसके बारे में फिर नीचे में बोला है, यहाँ पे देखिएगा, अगर इंड AS है तो कुछ और बोलना है और AS है तो कुछ और बोलना है. स्पेसिफिकली A23 भी बोला है यहाँ पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंशन अंडर 133 ऑफ द एक्ट, और इसके बारे में ऊपर से यहाँ से रेलेवेंस लेके आया है. आप जब पढ़ेंगे, सिंस आई एम रशिंग अ बिट, बट द थिंग इज दैट पैराग्राफ नंबर A22, A24 वगैरह रीड विथ करेंगे तो यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब, और ये अपने को शैल लिखा हुआ है सर. सो दैट इज वाई जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज नॉट द एप्लीकेबल फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन केस इंड AS. अदर देन इंड AS तो सेक्शन 133 वाला में नॉर्मल में जो अपने कंपनीज अकाउंटिंग रूल्स बोलते हैं वो आ गया. ये ओपिनियन है सर, अपना ओपिनियन मेन डिलीवरेबल है. Standards का wordings will always prevail over illustrations. It's stated in the illustrations also. छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्क इज देयर इन द गाइडेंस नोट ऑन IFC सर. गाइडेंस नोट ऑन IFC में जो ओपिनियन पैराग्राफ है उसमें अभी भी यूज होता है वर्ड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बट 143(3) का रिक्वायरमेंट्स में 2019 में चेंज आ चुका है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. So please understand that whenever we are trying to give an opinion in that regard, IFC में अपने को with reference to financial statement बोलना है and not over financial reporting. अगर ये कर रहे हैं तो again you are not in terms of standards नहीं बोल रहा हूँ मैं, directly Companies Act का violation होता है. Companies Act का requirement with reference to financial statements है, ठीक है. Then नहीं सर, अलग अलग है उसका रेफरेंस, उसका भी एक्सप्लेनेशंस वगैरह अलग दिया हुआ है. ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक ही मैं कर रहा हूँ. ओवर फाइनेंशियल बिकॉज इंटरनल कंट्रोल विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक लार्जर है. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर मैं, कंट्रोल प्रोसीजर्स के ऊपर मैं क्यों कमेंट करने जाऊँगा, वो इंटरनल मैटर्स है. लेकिन एटलीस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज उसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं रिपोर्टिंग प्रोसेस के ऊपर में, और विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रख लिया तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्योंकि रिपोर्टिंग मैं कर रहा हूँ लेकिन प्रिपरेशंस वगैरह फाइनेंशियल ये इन लोग बना दे कंपनीज, इसके ऊपर में भी उनका डेलिब्रेशंस है उसके ऊपर कि व्हाई दिस वर्ड वाज चेंज्ड एंड इट इज नॉट जस्ट IFC इज अ gamut and out of that IFC OR is prepared in that regard. Yes. And one more thing, SA 720 का जो है other informations वगैरह जो है, that paragraph is mandatory information other than the auditor's report and all those cases. उसके paragraphs mandatory हैं, sometimes people are missing that out and that is an issue. Also it has been found that in case previous year auditors अलग हैं तो are we required to mention anything in the audit report sir? Suppose the auditor, previous year auditor was done by any other auditor, ठीक है, तो do I need to mention anything in your audit report? क्या बात कर रहा है, प्रीवियस ऑडिटर का कंफर्मेशन हो गया, उससे डिस्कशन हो गया, खत्म हुआ बात, आया नहीं आया खत्म हुआ. ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखना है, मेरे को लिखना है सर, अदर मैटर पैराग्राफ में डिस्क्लोज करना है द प्रीवियस ऑडिट वाज डन बाय सच एंड सच ऑडिटर्स हु हैव एक्सप्रेस्ड देयर क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड ओपिनियन वाइट सो एंड सो रिलेटेड एंड वी हैव रिलाइड अपॉन द सेम. रिलाइड अपॉन द सेम का रिक्वायर्ड नहीं है, बट वहाँ पे मैंडेटरी मेंशन करना है. ऐसे 720 बोलता है, नॉट 700. 720 या 710 में बोलता है, उसके बाद 720 या 710 के अंदर, सॉरी 710 के अंदर में 710 सेज दैट कि यू हैव टू मैंडेटली मेंशन द सेम. ठीक है, ये मिस आउट होता है, आपसे मिस आउट हो जाएगा, चलिए ठीक है, FRR भी पकड़ता है, बोलता है नॉन कंप्लायंस. अब तो नया आया सर, दैट इज अ डिफरेंट इशू. यूडिन के अंदर में तो अलग आया है, यूडिन के अंदर में अलग गाइडलाइंस के हिसाब से वो जस्ट टू ट्रैक. I'll after the session we can talk about that. I'll just let me complete with the deliberation, then I'll come to that. And in case of consolidated audit report or even in the case of the central stat audit reports, अगर branch auditors है या consolidated audit reports है,
कंपोनेंट ऑडिटर का जो एक्सटेंट ऑफ वेरिफिकेशन है, जो बैलेंस शीट पे रिलाई कर रहा है, क्वांटम क्या है, वो भी मैंडेटरी देना पड़ता है. कितनी बार लिख देते हैं अदर मैटर पैराग्राफ्स में, द ब्रांचेस हैव बीन ऑडिटेड बाय सो एंड सो ऑडिटर्स, या सो एंड सो ब्रांचेस हैव बीन ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर्स. लेकिन क्वांटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज आल्सो मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी गिवन. अगर वो नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे 700 का पैराग्राफ 25 का वायलेशन हो रहा है. स्पेसिफिक लिखा हुआ है, ऐसे 600 के अंदर में स्पेसिफिक लिखा हुआ है. ओके, देन आईपीएफ फंड, वेदर द आईपीएफ फंड का ट्रांसफर के बारे में रिक्वायरमेंट है ना सर 143.3 में, रेड विद 143.11 का जो रूल 11 ऑफ द कंपनीज अकाउंटिंग रूल्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट रूल्स वाले में लिखा हुआ है सर. ठीक है ना, आईपीएफ में फंड में ट्रांसफर टाइमली हुआ कि नहीं हुआ. ठीक है सर. इट वॉज नोटेड दैट द ऑडिटर हैज मेंशन्ड दैट देयर वॉज नो डिले इन ट्रांसफरिंग द फंड्स टू द आईपीएफ, जबकि आईपीएफ के ट्रांसफर का एप्लीकेबिलिटी ही नहीं था. द ऑडिटर वॉज फाउंड एडवाइजरी उसको इशू हो गया था, बिकॉज इंस्टीट्यूट बोला कि अगर एप्लीकेबल ही नहीं है तो स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा एप्लीकेबल नहीं है. आप ये नहीं लिख सकते देयर वाज नो डिले, दैट मीन्स हुआ है डिले, नहीं हुआ अलग बात है. जब एप्लीकेबल ही नहीं है तो आप कैसे लिख रहे हैं, आप हंसेंगे बस. दैट इज व्हाट एफआरआरबी का ऑब्जर्वेशन है एंड क्यूआरबी का ऑब्जर्वेशन, एंड यू कैन फाइंड दैट AASB एक पब्लिकेशन लिख के आया था, कॉमनली फाउंड नॉन कंप्लायंसेस बाय क्यूआरबी, उसका वॉल्यूम 1 के अंदर में आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा ये चीज़. सो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ का ऑब्जर्वेशन से उठा के बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है बाद में जूता पड़ेगा मेरे को कि ऐसे ऐसे बोल के निकल गया. तो आई हैव टू टेक माई सोर्सेस इन दिस रिगार्ड. ओके, सेपरेट यूडिन फॉर स्टैंडअलोन एंड कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. देयर आर इंस्टांसेस इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेम यूडिन निकल गया. गलत है. सेपरेट असाइनमेंट, सेपरेट यूडिन्स. ठीक है. कैश एज सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखना अलाउड है क्या? कैश एज सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट. क्यों सर? रिप्रेजेंटेशन में मैंने रिलाई कर गया, मैं चेक नहीं किया. लिख सकता हूं ना. मैनेजमेंट हैज मेड दैट. फर्दर मोर ऑडिटर अगर चेक नहीं कर रहा, सामने सामने बोल रहा है सर मैंने तो चेक नहीं किया, आमी काज कोड़ी नहीं. Merely you cannot rely on that. That is why अगर मटेरियल है और ये सब है तो फिर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा. अगर मटेरियल नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज आपने ऑडिट प्रोसीजर कंडक्ट ही नहीं किया, फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे लिख के निकल जाते हैं और यहीं से पकड़ते हैं लोग. स्पेसिफिक यही चीज़ है. एफआरआरबी आपके वर्किंग पेपर चेक नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एफआरआरबी इज ओनली चेकिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग एंड ऑल दोस, उसके बेसिस पे सिर्फ निकालते हैं ऑब्जर्वेशंस. क्यूआरबी कम्स टू योर ऑफिस एंड चेक्स द सेम. Peer reviewer comes to your office and checks the same. TAQRB also doesn't come to your office, only on the basis of tax audit reports. Why I am saying this? We have been part of that. So इसके बारे में my father has been part of all these 4 review boards in various capacities. So various this has been done. मैं भी TAQRB इन सब का part रहा हुआ हूँ, तो that is why we are being observing a lot of those cases. ठीक है. So please understand that financial statement deliverable itself speaks a lot about whether auditor ने काम किया या नहीं किया. ऑडिट रिपोर्ट से सर 50 चीज पता चल जाएगा कि सही किया कि नहीं किया. ओके, देन इट शुड बी अंडरस्टूड दैट ट्रू एंड फेयर हो गया, ब्रांच ऑडिटर्स हो गया. ठीक है, जस्ट अ मिनट. ईओएम पैराग्राफ, एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ सर, ये कब देना चाहिए सर? व्हाट इज एम्फेसिस ऑन ऑफ मैटर पैराग्राफ सर? एनी आइडिया? क्वालिफिकेशन को डायल्यूट करने के लिए. थैंक यू सो मच सर. एनी अदर ओपिनियन सर? एम्फेसिस और मैटर, मान लीजिए मैंने ओपिनियन पैराग्राफ दिया, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ दिया, उसके बाद में इंफॉर्मेशन अदर देन द ऑडिटर्स रिपोर्ट और नित्ता अदर इंफॉर्मेशन दिया, उसके बाद में एम्फेसिस और मैटर दिया, अदर मैटर्स दिया, सो एंड सो फोर्थ. एम्फेसिस फॉर मैटर क्या चीज़ है सर? जेनरिक पार्लेंस में बोल रहा हूँ, की ऑडिट मैटर नहीं बोल रहा हूँ. की ऑडिट मैटर्स तो लिस्टेड के लिए होता है, मैं अनलिस्टेड की बात कर रहा हूँ. So please, because I don't have much time, so please I'll request you. कोई और बोलते सर ने सेड कि क्वालिफिकेशन को डाइल्यूट करने के लिए. इज दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्फेसिस फॉर मैटर पैराग्राफ सर? यूज उसी चीज के लिए किया जा रहा है, लेकिन गलत है. एम्फेसिस फॉर मैटर पैराग्राफ कैन ओनली बी गिवन टू ब्रिंग certain information to the notice of the users, but those are not non-compliances. Those are compliant aspects already reported in the financial statement. That is, those aspects are mandatorily
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज किया गया है, लेकिन यूजर के पास में इतना टाइम रहता नहीं, तो ऑडिटर को लगता है कि कुछ एस्पेक्ट्स यूजर्स को अलग से एम्फेसिस करके बताना कि भाई ये चीज़ भी देख लो, और इसमें कोई नॉन कंप्लायंसेस किसी भी तरह का नहीं है, तभी अगर कुछ वो एस्पेक्ट को आप यूएम चाहे तो दे सकता है। अगर वो कुछ नॉन कंप्लायंसेस एस्पेक्ट को दे रहा है तो इटसेल्फ वो यूएम के पैराग्राफ में नहीं आता है। यूएम का डेफिनेशंस में भी स्पेसिफिक लिखा हुआ है, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट सर। Emphasis for matter paragraph, a paragraph included in the auditor's report that refers to a matter appropriately presented or disclosed in the financial statement that in the auditor's judgment is of such importance that it is fundamental to users understanding of the financial statement। ये नहीं कि ये एस्पेक्ट गलत, ग्रेचुटी का कैलकुलेशन जो है कैश बेसिस पे है और आप यूएम में देके निकलते जा रहे हैं, वो सर एएस का वायलेशन है। कितने लोग क्वालिफाइड नहीं देने के चक्कर में यूएम देते हैं, वहीं फंस जाते हैं सर। क्वालिफिकेशन है। EOM कैन ओनली बी गिवन ऑन दोज एस्पेक्ट्स विच इज करेक्ट इन ऑल दिस रिगार्ड्स एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जस्ट दैट ऑडिटर इज ब्रिंगिंग दैट टू द नॉलेज। कुछ चीज करेक्ट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज भी है, तो आप EOM नहीं दे सकते। आपको लगता है इनकरेक्ट है तो आपको फिर क्वालिफाइड में जाना पड़ेगा। या मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है और आप बोलते हो कि ये चीज को मैं EOM में डालूंगा, EOM में नहीं डाल सकते। इन दोज केसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है, चीज सही भी है, तो आपको अदर मैटर पैराग्राफ यूज करना पड़ेगा, जैसे प्रीवियस ऑडिटर या ब्रांच ऑडिटर्स का केसेस में, एंड दैट इज व्हाट SA 706 इज स्पीकिंग अबाउट। यहीं पे गलती हो जाती है यूएम्स वगैरह में, और बहुत ज़्यादा ऑडिटर्स लोग जो है दे आर टेकिंग लीवेज इन इशूइंग क्लीन ऑडिट रिपोर्ट्स अंडर द गार्ब ऑफ दिस यूएम पैराग्राफ। यूएम पैराग्राफ का ये यूटिलाइजेशन नहीं है सर, एंड अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एडवाइजरीज या इनफैक्ट डिसिप्लिनरी मैटर्स आर कमिंग अप, या मान लीजिए ग्रॉस नेग्लिजेंस माना जा रहा है कि आप बस EOM दे के निकल गए, नहीं चलेगा। अगर वो क्वालिफिकेशन होल्ड करता है और आप उसको EOM दे के नहीं निकल सकते, ग्रॉस नेग्लिजेंस माना जाता है। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग गोइंग इन डीप इनटू दैट, बट दैट इज द केस, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, एंड सर्टिफिकेट वाले पार्ट में सर आ जाते हैं जस्ट फटाफट, बिकॉज आई नो कि आप बोलेंगे यार सर्टिफिकेट शुरू में बोल के निकल गया, कुछ बात ही नहीं की है। सो फाइन विद दैट सर, कमिंग टू दैट एस्पेक्ट। Certificates. First and foremost, I like to tell you this is entirely dependent on this document, Handbook on Certificates by Chartered Accountants. ये एक checklist formats है which has been given by Center for Audit Quality Directorate 6 months ago. They had come up with this. Not only this, and this is dependent on one document called 2016 का document था, Guidance Note on Reports on Certificate. Now let me tell you, guidance note on reports और certificates for special purpose, इंस्टीट्यूट ने 2016 में एक डाइल्यूट ऑलरेडी कर दिया कि आपको बोला जा रहा है सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट्स मत समझिए सर, उसको ये समझना पड़ेगा कि आपको उसको 90% केसेस में दोज आर नॉट सर्टिफिकेट्स बट दोज आर रीजनेबल एश्योरेंसेस देयर टू। आप उसको चेष्टा कीजिए रिपोर्ट के फॉर्मेट में देने का, सो दैट कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। सर्टिफिकेट इज एन एब्सोल्यूट ट्रू एंड करेक्ट, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। नेटवर्थ सर्टिफिकेट हुआ या मान लीजिए टर्नओवर सर्टिफिकेट भी हुआ, तो कैन यू से 100% आपका सारा का सारा क्लाइंट का सही है चीज? यू आर रिलाइंग ऑन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, यू आर कंडक्टिंग सर्टेन प्रोसीजर्स, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल टेस्ट चेक बेसिस यू आर सेइंग कि ये टर्नओवर है, ये नेटवर्थ है, एंड यू आर रिलाइंग ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज द केस में भी। सर 100% ट्रूथ कोई बोल सकता है कि ये है कि नहीं है? नहीं है सर। Institute has been aware of that. That is why Institute is saying that instead of going by the certificate वाला aspect, go and shift to the report वाला aspect. अब सर बोलेंगे client accept नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसके कारण भी Institute ने दिया है पैराग्राफ 80 में तो फॉर्मेट्स वगैरह दिए हैं बहुत सारे कि आपको जो एड्रेस करना है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना है, व्हाट आर द प्रोसीजर यू हैव डन, एंड इन केस द रेगुलेटर और द क्लाइंट इज नॉट एक्सेप्टिंग द सेम, then the procedure is stated to be at least draft वाला आप उसी फॉर्मेट में बनाइए इंस्टीट्यूट का नया फॉर्मेट में, send it to the client. क्लाइंट बोलता है मेरा एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस चीज को डॉक्यूमेंट करके रखिए, क्लाइंट ने रिजेक्ट किया कि सर ये फॉर्मेट मेरे को नहीं चलेगा, उसके कारण मेरे को उसके दूसरे फॉर्मेट में देना पड़ रहा है, लेकिन एटलीस्ट वॉट एवर फॉर्मेट यू आर गिविंग वहाँ पे सर्टिफिकेट की जगह बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू अस उस हिसाब से वर्डिंग्स को वहाँ चेंज करना पड़ेगा। दैट इज वाई नेटवर्थ सर्टिफिकेट हुआ या ये हुआ, you might be saying कि सर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, बट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर और अ टर्नओवर सर्टिफिकेट, सर इंस्टीट्यूट इज सेइंग सर जो देना है फॉर्मेट दो, लेकिन वहां पे दिस इज टू सर्टिफाई मत लिखो, स्टेटमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सो एंड सो सर्टिफिकेट रिपोर्ट लिख दीजिए,
और रिपोर्ट के अंदर में रेफरेंस दे दीजिए बेस्ड ऑन सो एंड सो एस्पेक्ट वी आर जस्ट इनिशियलाइजिंग दिस स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड एंड वी हैव कंडक्टेड दिस एंड इट ओनली गिव अ रीजनेबल एश्योरेंस देयर टू. आते हैं इस पे, बिकॉज रीजनेबल एश्योरेंस में इट्स जस्ट लाइक काइंड ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स वी आर इशूइंग. आपका टैक्स ऑडिट में ट्रू एंड करेक्ट है, वहां पे कुछ नहीं कर सकते बिकॉज द रेगुलेटर इज आस्किंग फॉर ट्रू एंड करेक्ट ओनली. लेकिन बहुत जगह पर नेटवर्क सर्टिफिकेट, बिकॉज वी कैनॉट से कि यही चीज है उसका टर्नओवर है बेसिस ऑन दिस. इट्स जस्ट 2 मिनट्स बस, बिकॉज देन अदरवाइज सर ये एस्पेक्ट थोड़ा सा ये मेलो डाउन हो जाएगा. बट लेट मी जस्ट टेल यू this format, a lot of formats for this is given by ICAI for UFC and all those cases, network certificates वगैरह के cases में. वहाँ they are saying that whatever even for share paid up capital वगैरह में अगर आप दे रहे हैं या कर रहे हैं तो you can just mention this statement इस चीज़ पे है और इस तरह से अपना रिपोर्ट बना दीजिए और जो चीज़ एक्चुअल में देना है उसको इसका अटैचमेंट का फॉर्मेट पार्ट कर दीजिए. ये स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट बोलता है. प्लस अगर क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो एक और चीज़ है सर, जस्ट लास्ट स्लाइड आई थिंक, बिकॉज आई हैव बीन हैंडेड ओवर द स्लिप टू डिसएम्बार्क फ्रॉम द पोडियम. जस्ट अ सेकंड सर. कहाँ गया? अब ये वाला प्रॉब्लम होता है एआई से बनवाने में ना, याद नहीं रहता कहाँ स्लाइड गया. रिजेक्ट्स, हाँ द वर्ड इज रिजेक्ट्स. रिजेक्ट है कहीं पे एक बार. इट मे सो हैपन दैट द कंसर्न अथॉरिटी रिजेक्ट द अफोरसेड एश्योरेंस रिपोर्ट issued by the practitioners on the account of modifications made to the prescribed layout or wording. करेक्ट सर? जो आप लोग का कंसर्न है सबसे ज़्यादा. In such circumstances, this is the guidance note speaking out sir. Paragraph number 32 you can आप लिख भी सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर. The practitioner should obtain the evidence of rejection of the assurance report by the concerned authority and make it a part of engagement documentation. अब आप बोलोगे सर उसका टेंडर ही रिजेक्ट हो जाएगा, आप क्या बात कर रहे हो? तो उसके लिए भी अगर है कि क्लाइंट खुद बोल रहा है कि आगे नहीं बढ़ेगा तो वो भी आप कर सकते हो, नीचे के पैराग्राफ में दिया है. एंड देन द प्रैक्टिशनर इन सच केस मे इशू द एश्योरेंस रिपोर्ट इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ रेगुलेशन सिंस द प्रैक्टिशनर वुड हैव कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द गाइडेंस नोट. गाइडेंस नोट के हिसाब से मैंने दिया, क्लाइंट ने रिजेक्ट किया, क्लाइंट बोल रहा नहीं चलेगा, उसको एविडेंस के फॉर्मेट में रख लीजिए और फिर अपना काम करके निकल जाइए. आपको बचाने का तरीका है सर. इंस्टीट्यूट भी समझ रही है कि कितनी बार नहीं होता, तो पैराग्राफ 32-33 के अंदर में लिखा हुआ इन द रिकॉग्नाइज रिजेक्शंस पास्ट में भी हो रखा है, तो आप ये करके एटलीस्ट बढ़ जाइए. एटलीस्ट ड्राफ्ट दे दीजिए, यूडिन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. आप एक बार ड्राफ्ट दे दीजिए, क्लाइंट रिजेक्ट करता है, उधर से लोग रिजेक्ट करता है, उसको नोट डाउन करके रखिए. और या फिर पूरा का पूरा चीज़ वैसे बनाइए, वर्डिंग्स वगैरह को दिस इज टू सर्टिफाई वगैरह को चेंज कीजिए. गाइडेंस नोट्स और हैंडबुक वगैरह में स्पेसिफिक दिया हुआ है सर. नहीं करके 15 से 20 सर्टिफिकेट्स दिए हैं, ठीक है. इन दोज केसेस आप उसको जो उस हिसाब से वर्डिंग्स को चेंज कीजिए, स्टेटमेंट के अंदर अटैच कर दीजिए, उसको निकाल दीजिए एंड यू आर डन विद दैट. इंस्टेड ऑफ सर्टिफिकेट्स ट्राई टू यूज द वर्ड assurance, reasonable assurance or limited assurance in this regard. So thank you so much for having a patient hearing. In case you are having any questions, after we'll be able to take it. Okay, thank you so much. We had a very nice and detailed threadbare analysis of different aspects, and we have enjoyed it in this Saturday evening.